Hello students, welcome to Time Classes. I hope you are doing good and all set for today's class. Today we are going to discuss a topic by the name of averages, mixtures and alligation. And the handout code is QAHO 1002109. This class will be in 3 parts, so let us start today's class. I hope you all are set for today's class. Perfect. So let's start. So in mixture alligation, we'll discuss about these subtopics. Simple average, the arithmetic mean, weighted average or weighted arithmetic mean, alligations, the reverse of arithmetic mean, mixtures, and replacement or removal of a solution with another. These are subtopics in average, mixture, and alligation. The first topic is simple average, the normal average, the weighted average, alligation, mixtures, and replacement or removal of a solution with another. So let's start the first subtopic, which is simple average or arithmetic mean. In general, when we talk about average, average is a central value used to represent a group property. We normally use average very frequently, like what is the average age of the politicians, what is the average age of the kids in nursery admission, what is the average salary of IIM graduates. Average we use in like day-to-day life. What is the average income of a person, what is the average expenditure, what is the average price of a iPhone mobile. So average is something we use very commonly for age kind of a thing, for salary kind of a thing, for any comparison I can say, we use average in a more frequent manner. And similarly, average expenditure of a person in last 5 years, what was the expenditure, what was the growth in last 5 years. So this thing we talk about. So average is a very, very common term. In this class, we'll discuss what type of questions are expected in average and what all details and formulas and theories are there for the average part. And it's a very important topic of arithmetic. So like percentages, ratio, averages, these are basically the arithmetic topics and these are very important topics and this topic will be used in most of the other topic as well. So I can say in this topic the basic building block in most arithmetic questions. Like in arithmetic, percentage is very important, ratio is very important. On a similar way, average is also very, very important. So one should know all the basic nuances of averages, how to calculate average and how to find the value in a good manner. So that is the purpose of today's class. First is a simple average. A normal average is sum of the quantities upon number of quantities. Like for two numbers, 20 and 30, the average will be 20 plus 30 divided by 2. The two numbers, sum of those values divided by number of those values. For five numbers, 10, 20, 30, 40, 50, we're supposed to add these numbers, 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 and divided by 5 only. So simple average will be sum of the quantities divided by the number of quantities. It's a simple average. x1 plus x2 plus x3 plus x4 till xn divided by n. Whatever sum is there for n observations, if there are n observations are there, divided by n. Now in this topic, these values will normally call it an observation. x1 is an observation, x2 is an observation. Number of observations can be minimum 2, maximum can be anything, 1000, 1 lakh, कुछ भी हो सकती है. But suppose, like in the class, suppose if I have to find the average age of all the students, so what I'll be doing, I'll be adding all the ages, age 1, age 2, age 3, age 4 and so on and so forth. Sum of all the values divided by number of all the values. This is basically the basic logic of averages. Average lies between the least and the greatest value of the observation, and the average denotes the central tendency of certain data. Like average age in a class, suppose if in your class, suppose there is a person, there is a student, his minimum age is 18 years, maximum age is 23 years, and all the values are basically between 18 to 23 years. So I can say average age of all the students will definitely lie between the least number, which is 18, and the highest number, which is suppose 22 or 23. So in this case, the point is average is always central value used to represent a particular group. Average value में minimum भी हो सकती है, all the values are equal, maximum भी हो सकती है, but normally if there is a variation, then only average is calculated. The purpose of average is to get some idea about the group कि एक class का average age क्या है, politicians का average age क्या है. अब सब same age के नहीं हो सकते हैं. There will be different, the variation will be there. A minimum value will be there and a maximum value will be there. So idea is to find out what is the average or central tendency of particular data.
तो वही पर्पस होता है कि एवरेज कितना नंबर है, एवरेज मार्क्स इन अ क्लास सपोज। अब एक के मार्क्स 70 आए हैं, एक के मार्क्स 80 आए हैं, एक के मार्क्स 90 आए हैं, और कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, तो एवरेज बेसिकली विल बी बिटवीन द लीस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में लाया करेगा, बिटवीन द लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन। Now there are some few points are there. I'll be validating these points through different examples, but ये point बहुत important है, तो आपको ये point थोड़े याद रखने हैं, और कैसे इनका use होगा या क्या example हम देखते हैं वो हम अगली slide में देखेंगे। If each variable in a group increases by k, the average also increase by k. If each value is increased by k, the average will also increase by k. If each variable in a group decreases by k, the average also decreases by k. If every number decreases by k, so average also decreases by k only. Same thing for multiplication and division. If each variable in the group is multiplied or divided by k, the average also multiplied or divided by k. The same thing is valid for addition, subtraction, multiplication and division. This k thing is valid for all the four things. अगर एक नंबर में ऐड करेंगे वेरिएबल में तो एवरेज बढ़ जाएगा, k से बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज करेंगे तो एवरेज के से डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे के से तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। द डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग इक्वल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द डिफरेंस। अगर दो अलग अलग ग्रुप से रखें, ग्रुप ए इज गिवन, ग्रुप बी इज गिवन, अगर मुझे उनके एवरेज का डिफरेंस निकालना है और इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकाल के एवरेज निकालना है, डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालना है, तो वो सेम ही होता है। डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स is equal to the average of the difference, वो दोनों सेम वैल्यूज होती है। Let us validate all these points through examples कि क्या मतलब है इसका and how to use in our questions actually. That is a more important thing. So let us discuss point by point here. If each variable is increased by k, average also increases by k. इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है और कैसे इसमें इन दोनों पॉइंट को एक साथ देखते हैं। So average of 15, 18, 24, 32 and 41. There are 5 observations are given. Now simple average will be a plus b plus c plus d plus e upon 5. So 15 plus 18 plus 24 plus 32 plus 41 divided by 5. Average will come out to be 26. इन सबको ऐड कर सकते हैं। 15 plus 18 33, 33 plus 24 57, 57 plus 32 89, 89 plus 41 is 130, 130 by 5. The average is 26. Now average of 20, 23, 29, 37 and 46. Now suppose the first value I know, तो second को solve करने की जरूरत नहीं है। Basically 15 and 20 डिफरेंस कितना है 5, इसमें डिफरेंस कितना है 5, इसमें डिफरेंस है 5, इसमें भी डिफरेंस है 5, इसमें भी डिफरेंस है 5। एवरेज भी 5 से ही इंक्रीज करेगा। आप नॉर्मल एवरेज निकाल लीजिए। There are two things here. या तो आप नॉर्मल एवरेज निकाल सकते हैं। If you calculate normal average will come out to be 31. If I add these numbers now, 20, 31, 29, 37, 46. If I add these numbers and divide it by 5, my average will come out to be 31. But important logic is if every number is increased by 5, this 5, this 5, this 5 and this 5, I can say my average will also increase by 5 only. As simple as that. The practical example can be अगर ये 5 स्टूडेंट्स की या 5 फ्रेंड्स की एज है सपोज, या 5 फैमिली मेंबर्स की एज है 15, 18, 24, 32 एंड 41। इनका प्रेजेंट एवरेज एज आज इस ग्रुप का 26 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर्स एवरेज क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स एवरीबडी विल ग्रो बाय 5 ईयर्स, एवरेज भी 5 से इंक्रीज होगा। न्यू एवरेज बिकम 26 प्लस 5 इज 31 ओनली। एज सिंपल एज दैट। So average of 5 numbers, if I know, the average increases by k if each number is also increases by k and vice versa. If every variable is increasing, average will also increase. तो यही फंडा है। अगर ये 5 मेंबर्स थे और इनकी एज मुझे पता है तो इनका एवरेज कितना है 26 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर्स इनका एवरेज क्या होगा 5 से या 10 से बढ़ जाएगा। इफ ईच वेरिएबल इज इंक्रीज बाय के, एवरेज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय के ओनली। सेम लॉजिक इज वैलिड फॉर डिक्रीज ऑल्सो। अगर सपोज व्हाट आई विल डू, इनिशियल वेरिएबल्स को मैं डिक्रीज करता हूँ 10 से डिक्रीज, 15 माइनस 10, 18 माइनस 10, 24 minus 10, 32 minus 10 and 41 minus 10. So what I am doing, I am decreasing these values by 10. So numbers become 5, 8, 14, 32 and 31. तो एवरेज भी 10 से डिक्रीज होगा। आप इसका एवरेज अगर निकालेंगे इन वैल्यूज का 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस
22 प्लस 31/5, तो एवरेज 16 ही आएगा। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 14 27, 27, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 22 will be 49 plus 31, 80/5, the average will be 16 only. If each variable is decreased by 5, in that case average will also decrease. If each variable decrease by 10, average will also decrease by 10 only. तो यही दूसरा वाला पॉइंट था। If each variable is increased by k, average will also increase by k. अगर वो डिक्रीज होगा तो एवरेज भी कैसे डिक्रीज हो जाएगा? दिस इज अ सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, if each variable in a group multiplied or divided by k, average will also multiplied or divided by k. अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को तो एवरेज भी उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। सिमिलर नंबर्स 15, 18, 24, 32, 41, इनका एवरेज 26 आएगा। व्हाट आई कैन डू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 3, 15 इंटू 3, 18 इंटू 3, 24 इंटू 3, 32 इंटू 3 एंड 41 इंटू 3. So numbers become 45, 54, 72, 96 and 123. So what will happen, इनका अगर आप एवरेज निकालोगे नॉर्मल तरीके से, that is 78, 45 plus 54 plus 72 plus 96 plus 123/5. But simple shortcut is, if every number is multiplied by 3, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 3 से, एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई होके ही आएगा। एवरेज फ्रॉम 26 will become 78 only. So we can directly say, if each variable is multiplied by 3, average also multiplied by 3 only. तो वही मेथड है जिसमें हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग नॉर्मल एवरेज, बट शॉर्टकट इज अगर हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5, 9, 12, 16 and 20.5. So what is happening here? इसका अगर हम एवरेज चेक करते हैं तो 7.5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20.5/5 इज 13. सो सम कितना आएगा? दिस इज 21, 21 प्लस 16 37, 37 plus 28, 65/5 is 13. Now what is happening? I have done half of each number. मैंने इसका हाफ कर दिया, 15 का हाफ, 18 का हाफ, 24 का हाफ, 32 का हाफ एंड 41 का हाफ. तो एवरेज भी क्या हो गया? हाफ ही हो गया. If every observation become half, average will also become half only. तो यही पॉइंट है. तो एडिशन, average will be added up. Subtraction, average will decrease. Multiplication, average will multiplied by k. Division, average will divide by k. तो ये सेम लॉजिक जो है we can use it for all things. Subtraction, एडिशन के लिए, subtraction के लिए, multiplication के लिए and division के लिए. ये हम सब के लिए यूज कर सकते हैं. Next, the difference in the average of two groups having equal elements is equal to average of the difference. Difference in the average of two groups. So definitely two groups will be there. एक सेट A है और एक सेट B है. तो सेट A 15, 18, 24, 32, 41. इनका एवरेज आएगा 26. ये जो नंबर बार बार यूज कर रहे हैं सेम ही नंबर है, 15, 18, 24, 42, 41. सेट B है, इनका एवरेज आएगा 68. तो सेट बी इज 40, 50, 60, 90, 100. इसका एवरेज आएगा 68. ठीक है. डिफरेंस इन द एवरेज इज 68 माइनस 26 इज 42. अगर हम इन दोनों के डिफरेंस ऑफ एवरेज निकालते हैं, यानी फर्स्ट एवरेज निकालेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस ऑफ एवरेज इज 68 माइनस 26 इज 42. तो डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द डिफरेंस. अब ये एवरेज ऑफ डिफरेंस के बराबर होगा. अब डिफरेंस इन द एलिमेंट्स, डिफरेंस इन द एलिमेंट इज 40 माइनस 15 इज 25, 50 माइनस 18 इज 22, 60 माइनस 24 इज 36, 90 माइनस 32 इज 58 एंड 100 माइनस 41 इज 59. अगर मैंने इन नंबर्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, तो 25, 32, 36, 58, 59 आएगा. ठीक है. अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं 25 plus 32 plus 36 plus 58 plus 59/5, then average will be 42 only. So for 5 numbers, I think this is the thing I have explained. This will be more and more important अगर numbers बहुत ज़्यादा होंगे. If 20 observations are there, 40 observations are there, आप 2 बार एवरेज निकाल रहे हो और फिर उसमें माइनस कर रहे हो, बेटर है कि एक बार डिफरेंस निकाल के आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं. So these things will play an important role when the observations are more. Had it been 2 observation तो आप कुछ भी कर लो, there are many methods available.
But this logic is important. The difference in the average of two groups having equal elements is equal to average of the difference only. Advantage will be यहाँ मैं एक ही बार एवरेज निकाल रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस चूज कर लिए. अब डीआई में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि there are many observations are given और हमें दो ग्रुप्स के डिफरेंस निकालना है एवरेज का. तो आप एक बार डिफरेंस निकालते जाओ और एवरेज विल बी रिक्वायर्ड ओनली वंस ओनली. तो दिस इज लॉजिक इज क्वांट में भी क्वेश्चन हो सकता है और डीआई में भी क्वेश्चन हो सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट इन बोथ द एस्पेक्ट्स. तो वो दोनों तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, deviation method. We use an approach called deviation method that works best when numbers are closely clustered together. If there are 5 observations, 20 observations, 10 observations, any number of observations which are like more than 5 or like around 10, 12, 15 observations are there, and they all are closely clustered together. They are close to one particular value. In that case, we can use a deviation method. What we assume any central number as an average and find a deviation of all the observations with respect to the assumed arithmetic mean or average only. तो हम उसमें कुछ assume कर लेंगे. And adding the average of the deviation to the assumed mean gives the exact average of the original observation. तो हम जो simple numbers को add करेंगे उससे भी मेरा average वही आएगा. Better thing is, let us find the average of these 5 numbers: 975, 978, 984, 992 और 1001. Now one tedious method is कि इनको हम ऐड कर रहे हैं. 975, 978, 984, 992 और 1001 को ऐड कर रहे हैं. So basically I am taking two cases here. Basically there are three cases. Overall there are three cases. One being a normal method. Normal way is 975, 978, 984, 992, 1001. इसका simple average a plus b plus c plus d plus e upon 5. Answer will be 986. So if you use calculator तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक विदाउट कैलकुलेटर इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू यूज अप्रोच नंबर 2 और अप्रोच नंबर 3. नाउ देयर आर टू केसेस आई हैव टेकन. वन इज assume mean. If assume mean is 960, now what I'll be doing, इनका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस ऑफ 975 एंड 960, डिफरेंस इज 15. डिफरेंस ऑफ दीज टू 18, डिफरेंस ऑफ दीज टू 24, डिफरेंस ऑफ दीज टू 32, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 41. Now the human tendency, it is very important कि the human tendency, it is very important to see कि ये numbers ऐड करना easy होगा. 15, 18, 24, 32, 41 इनको ऐड करना बहुत easy होगा. उनको अगर ऐड करेंगे और if we divide it by 5 and if we add this number in the assumed mean, my answer will be same, which is 986. Now suppose you have two options कि आप इन सारे numbers को ऐड कर लीजिए. Option number 2, you add only these extra values from the assumed mean. कितने extra numbers हैं, कितना surplus और deficient part है, तो उसको ऐड करेंगे. उस केस में भी आंसर जो है वो 986 का ही आएगा. Third is more beneficial. If you assume any central number, my minimum value is 975, maximum value is 1001. So I can assume my central number to be 985 or 980. Now 980 और इसमें कितना difference है? Difference is 975 minus 980, that is minus 5. 978 minus 980, minus 2. 984 minus 980, difference is plus 4. This and this, difference is plus 12. This and this will be plus 21. अब ये ऐड करना सबसे ईजी होगा. तो इसमें प्लस भी है माइनस भी है. सब नंबर्स विल कैंसिल आउट ऑल्सो. एक बार देखते हैं. 12 plus 4, 16. 16 minus 7 will be 9. 9 plus 21, 30. 30 by 5 is 6. Answer is 980 plus 6, that is 986 only. So you have three options. The very tedious, very difficult method is first option, जहाँ पे हम सारे numbers को add कर रहे हैं. We are adding these 5 numbers. उससे मेरा आंसर 986 आ जाएगा. Second is if I am assuming my mean as 960, तो what will happen? मैं इन numbers को add करूँगा. 15, 18, 24, 32, 41 divided by 5 will give you basically the extra add. कितना extra होगा? 26 का summation extra होगा. Number will be 986. Third is very easy. तो we can use deviation method जहाँ पे एक central number assume कर सकते हैं. Least observation is 975. Highest is 1001. हम कोई भी central number लेके इसको solve कर सकते हैं. You can take 960, answer same आएगा. If you take 980, same answer आएगा. 985, same ही answer आएगा. If you can assume any mean, आप कोई भी mean लेके इसको solve कर सकते हैं to get the correct answer.
But the important thing is when numbers are closely clustered together. This will be used importantly when numbers are closely clustered together. Had one observation being 100, second observation being 990, third being 3000 and fourth being 5000, तो उसमें अप्रोच यूजफुल नहीं होगी. तो वी यूज डेविएशन मेथड when the observations are actually close. अगर सारे numbers close होंगे उस केस में इस अप्रोच को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे हम एक्चुअली. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. Next, average in AP series. So observations are 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480. Now those who do not know AP series is arithmetic progression. In arithmetic progression, the difference between two consecutive terms is same. 320 to 340 difference 20 का है, फिर difference 20 का है, फिर difference 20 का है, फिर difference 20 का, फिर difference 20 का, फिर difference 20 का, फिर difference 20 का, फिर difference 20 का. Now one normal method. Normal approach is how many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simply add these 9 numbers. 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 upon 9. Normal average is 400. But a better method is in case of an AP series where difference of consecutive terms is same. What we can do, हम फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो वो भी वही आएगा. 320 plus 380 divided by 2. The answer will come out to be 400 only. One more thing, if I take the average of second and second last term तो भी एवरेज वही आएगा. थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म तो भी एवरेज वही आएगा. फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म तो भी एवरेज वही आएगा. एंड ये एपी का प्रॉपर्टी है. व्हेन दिस टॉपिक विल डिस्कस इन द आपका अलजेब्रा टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है. बट राइट नाउ द ऑब्जर्वेशन थिंग्स इज फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम और फोर्थ लास्ट का सम is always same. If it is always same, it will help us in average part actually. So what you can do, आप first और last को ऐड कर सकते हैं और सेकंड लास्ट को ऐड कर सकते हैं और थर्ड लास्ट को ऐड कर सकते हैं और फोर्थ लास्ट को भी ऐड कर सकते हैं. एवरेज तो 400 ही आएगा. तो दिस इज अप्रोच नंबर 1, वेरी टीडियस वन. अप्रोच नंबर 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. सेकंड लास्ट से भी वही एवरेज आएगा, थर्ड लास्ट से भी वही एवरेज आएगा, फोर्थ लास्ट से भी वही एवरेज आएगा. That is 400. One important thing, if there are odd number of terms are there, if there are 9 terms are there, if there are 3 terms are there, if there are 17 terms are there, middle term is always the average. Middle term here is 400 only. So whenever odd number of terms are there, this 400 is the average of given series. First or last, second last, third last, and fourth last. Because there are 9 terms are there. Now because there are 9 terms are there, एवरेज जो है वो मिडिल टर्म के बराबर भी हो जाएगा. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. नो एवरेज ऑफ सपोज फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल विल बी मिडिल टर्म विच इज 5 ओनली. मिडिल टर्म 5 होगी, 4 यहाँ पे होंगे लेफ्ट में और 4 राइट में होंगे. तो एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा. सो की थिंग इज टू फाइंड द एवरेज इन एपी सीरीज देयर आर 2 मेथड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 plus 9 10 by 2 5 ऐसे भी निकाल सकते हैं. सेकंड लास्ट भी ले सकते हैं, थर्ड लास्ट भी ले सकते हैं, मिडिल टर्म भी ले सकते हैं. सो आंसर इज 400 फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड फॉर द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड राइट नाउ वाज 5 ओनली. तो ये इसमें यूज कर सकते हैं. इफ देयर आर 8 terms are there, let us see what will happen. 320 340 360 380 400 420 440 460. One being a normal method, 320 plus 340 plus 360 plus 380 plus 400 plus 420 plus 440 plus 460 divided by 8 only, a normal method. But as I told you, in AP series, first plus last का sum, second last का sum, third last का sum और fourth last का sum is always same. So for simple thing will be 320 plus 460 divided by 2. So first term plus last term divided by 2. So answer will be same. तो फॉर्मूला इसमें ये बन जाता है a plus l upon 2. इफ a is the first term, l being the last term, तो एवरेज क्या होगा a plus l upon 2. और सेकंड लास्ट को भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड लास्ट को भी ऐड कर सकते हैं, मिडिल 2 टर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं. सपोज फॉर अ सीरीज इफ आई नो मिडिल 2 टर्म्स, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर, मिडिल 2 टर्म्स विल ऑलवेज बी देयर. उस केस में उनका जो एवरेज होगा वही मेरा पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा. सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट.
So in summary, we can say if number of observations are evenly distributed, i.e. if they are in arithmetic progression, if the number of observations are evenly distributed, then average of all the observation will be just the average of their smallest and largest value. What we can do, only smallest value and the largest value. It also equals the middle value if the number of terms are odd, and average of the middle two terms if there are even number of terms are there. If there are 10 terms, so we can take middle two terms. If there are 9 terms, then the only one middle term will be there. So in case of odd number of terms, middle term. In case of even number of terms, we can take average of the middle two terms also. So in general, average of terms equidistant from beginning and end is same and equal to average only. So this point is important. Now let us see इसका use कहाँ पर होगा अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. Find the average of first 100 natural numbers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 till 100. Now without adding, I can say my average will be first plus last term divided by 2. First term is what? 1. Last term is what? 100. So 1 plus 100, overall 101 हो जाएगा. 101 divided by 2, overall average will be 50.5 only. So 1 plus 100 upon 2, the net average is 50.5. तो यही important part है, and we should know कि how to use this part. For first 100 natural numbers, average is 50.5 only. Next. Let us see some questions which are from the handout QAHO 2109. कैसे इनको सॉल्व करना है और क्या इसका इजी अप्रोच रहेगा. ये जब थ्योरी थी करी थी तो एवरेज की जो सिंपल वाले क्वेश्चंस है पहले हम डिस्कस करते हैं, देन विल मूव टू द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. The marks scored by the 5 students in a test are 35, 45, 55, 65, 75. If each of them is given 9 additional marks due to some mistake in the questions, what will be the average of the marks scored by them? Initial averages numbers are given 35, 45, 55, 65, 75. Now there is no need to add these numbers. Average निकालना है ना, हम add नहीं करेंगे. Without adding, I can say 35, 45, 55, 65, 75. Because ये AP series है. Difference is same. Difference between 35 and 45, 45 and 55, 55 and 65, 65 and 75. इनका average क्या होगा? Middle term होगी 55. आप normally भी करके देख लीजिए, but shortcut is very easy. Average will be 55 because there are odd number of terms. If each of them is given 9 additional marks, every value is increasing by 9. तो मुझे नए numbers निकालने की जरूरत भी नहीं है. Average will also increase by 9. So average become 55 plus 9 is 64 only. इसमें क्या है देखते हैं. I think यही जो मैंने बोला है वो ही होगा. Since the 5 numbers are in AP, the average will be the middle term. Average is 55 only. If each of them is given 9 additional marks, the average will also increase by 9 marks only. It means the new average will be 55 plus 9 is 64. So if I know those basic points जो मैंने करवाए थे कि for any AP series, average is the middle term. Point number 1. If each variable is increased by k, average will also increase by k only. इनको हमें ढंग से यूज करना है, वरना अगर ये नहीं पता है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. पहले आपको इनको ऐड करना पड़ेगा 35, 45 या इनमें 9 ऐड करना पड़ेगा. 35 plus 9, 45 plus 9, 55 plus 9, 65 plus 9 and 75 plus 9. और फिर मुझे उसका एवरेज निकालना पड़ेगा. तो वो बहुत टीडियस प्रोसीजर है. तो हियर द सिंपल लॉजिक विल बी बिकॉज ये एपी सीरीज है, इनका एवरेज मिडिल टर्म के बराबर होगा विच इज 55. If each of them is given 9 marks, average will also increase by 9 marks only. So answer is 55 plus 9 is 64. So this is the answer for this question. Done? Okay. Chaliye. Question number 2. What is the average of all the 3-digit numbers which leave a remainder of 4 when divided by 8? What is the average of all the 3-digit numbers which leave a remainder of 4 when divided by 8? First number कौन सा होगा? Now divided by 8, those numbers जो 8 से divisible होते हैं, 8k. Remainder is 4. Number will be in the form of 8k plus 4. First number is 4 only. When divided by 8 leaves a remainder 4. पर हमें तो 3-digit numbers निकालने हैं. तो 8k plus 4, I can say जो numbers होंगे, first number 100 होगा. 100 जो है वो 8k plus 4 form में है. 12 into 8 is 96. 96 plus 4 is 100 only. नेक्स्ट नंबर 108 होगा, नेक्स्ट नंबर 116 होगा एंड सो एंड सो फोर्थ. अगर प्रॉब्लम है तो आप इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं कि 8k plus 4 इज माई टाइप ऑफ अ नंबर.
टाइप क्या है, 8k+4 फॉर्म में है। नंबर्स विल बी फ्रॉम 100 टू 999, नंबर 100 से लेकर 999 के फॉर्म में होंगे। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू क्या होगी ताकि मेरा नंबर कैलकुलेट हो पाए। हाईएस्ट नंबर में ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। लीस्ट तो 100 के आसपास ही है, तो आप के को 12 भी पुट करेंगे तो 8 इंटू 12 इज 96 प्लस 4 इज 99 ओनली। फॉर हाईएस्ट थिंग 8k+4 इज लेस देन इक्वल टू 999. 8k will be less than equal to 995. With 995, k will be 995 divided by 8. Now some greatest value will come, जहाँ पे नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर 995 को 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 995 माइनस 3, नंबर विल बी 992. तो 8k will be 992, 8k plus 4 will be 996. So 100, 108, 116 and so forth till 996. बट यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे। विदाउट एडिंग आई कैन से कि इफ द नंबर्स आर 100, 108, 116 एंड 996, इनका एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज दिस इज एन एपी सीरीज। तो अगर एपी सीरीज होगी तो इनका एवरेज जो है वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारा जो आंसर होगा वो 100 प्लस 996 अपॉन 2, दैट इज 548 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ आई नो दैट एपी लॉजिक इन एपी सीरीज एवरेज इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। अदरवाइज मुझे एपी का सम करना आना चाहिए। नॉर्मल सम करेंगे फिर तो पता नहीं आंसर कैसे आएगा, तो बहुत मुश्किल तरीके से आंसर आएगा। बट फॉर एनी एपी सीरीज एवरेज इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी थी टू गेट द करेक्ट आंसर। So answer is 100 plus 996 by 2, that is 548. Next, the prices of 5 articles are rupees 1201, 1204, 1207, 1198 and 1195. What is the average price of the articles? 5 numbers given है, इनका ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। That is approach number 1. 1201, 1204, 1207, 1198, 1195. We can add these numbers and divide it by 5. But a better method is if you assume a mean. एक method कहता है deviation method. So with deviation method it become very easy. My assume mean is 1200. Now from 1200 कितना difference है? कितना difference है? 1201 and 1200 difference is 1. 1204 and 1200 difference is 4. 1207 and 1200 difference is 7. 1198 and 1200 difference is -2 and difference is -5. What you can do, आप इन numbers को ऐड कर सकते हो। 1 plus 4 plus 7 -2 -5, और ये ऐड करना भी बहुत ईजी है। -2 and -5, -7 तो ये कट जाएगा। 1 plus 4 5, 5 by 5 average is 1, तो आंसर is 1200 plus 1, आंसर is 1201 only. Key thing is in such type of question we use deviation method. All the numbers are clustered together. They are clustered around 1200. तो इसमें हम 1200 को अगर मीन मान लेंगे तो my answer become very easy. So this is how this can be calculated. Okay. Next. The ages of 6 persons when measured in years are consecutive integers in increasing order. The average age of the 3 youngest members is 35. Find the average age of the 5 youngest members. Now what is important? They are consecutive integers. Consecutive integers like 3, 4, 5, 4, 5, 6, 34, 35, 36 and so on and so forth. Consecutive integers are there. That means they form an arithmetic progression. Consecutive integers a minus 1, comma a plus 1. They form an arithmetic progression. For 3 youngest members, the average is 35. I told you for any odd number of values, average will be central value. तो सेंट्रल वैल्यू क्या आएगी? 35 आएगी। उसके पहले क्या होगा? 34 होगा। उसके बाद में क्या होगा? 36 होगा। अगर 3 नंबर्स का एवरेज 35 है एंड दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सेंट्रल नंबर इज 35, उसके पहले 34, नेक्स्ट नंबर 36 होगा। तो नंबर्स कौन से होंगे? तो नंबर्स विल बी, आप मेथड से भी कर सकते हैं बट शॉर्टकट इज ऑल्सो वेरी इजी। 35 सेंट्रल नंबर है, 34 एंड 36 होगा, और ये 3 यंगेस्ट मेंबर्स हैं, तो एजेस क्या होंगी? 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। अगर ऐसे नहीं करना है तो वन मोर अप्रोच कैन बी, वन कैन अज्यूम द एजेस टू बी a-1, a+1। इक्वली प्रूफ हो जाएगा कि वाई द एवरेज इज इक्वल टू सेंट्रल नंबर। इसका प्रूफ की तरह काम कर सकता है।
एक नंबर A-1 है, एक नंबर A है, एक नंबर A+1 है। एवरेज क्या होगा, -1 + 1 से कट जाएगा, 3A/3, एवरेज विल बी A ओनली, दैट इज 35। सो देयर आर टू वेज हियर, आप वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, बट सिंपल शॉर्टकट विल बी फॉर 3 मेंबर्स, odd number of terms are there, average will be central element. Central number element क्या होगा, 35. Ages are in consecutive form, तो 32, 34, 35 और 36 हो जाएगा। 6 members are there, 34, 35, 36, 37, 38. बट हमें तो 5 यंगेस्ट मेंबर्स की एज निकालनी है, 34, 35, 36, 37, 38। तो इनका एज क्या होगा, अगेन देयर आर 5 वैल्यूज आर देयर, तो एवरेज एज क्या होगा, विल बी द मिडिल एलिमेंट ओनली, मिडिल एलिमेंट इज 36 ईयर, और 34, 35, 36, 37, 38, द मिडिल एलिमेंट इज 36 ईयर्स, वही इसका एवरेज एज होगा। सो बाय दिस वे इट बिकम वेरी इजी। डन, लेट्स मूव फर्दर। The average weight of 20 students increases by 1 kg when a new student joins the group. If the average weight of the student initially was 55 kg, what is the weight of the student who joined the group? For such type of questions, there are two ways are there. One can be a reasoning method or a आपका average method, जहाँ पे हम कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे और हमारा आई थिंक वैल्यू देख के ही आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है जो हमें यूज़ करना चाहिए। सेकेंड विल बी नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक ग्रुप है, आपकी एक क्लास है, उस क्लास में द इनिशियल एवरेज वेट इज 55 kg, पूरे ग्रुप का वेट 55 kg है। इफ समबडी विल एंटर इन द ग्रुप, तो एवरेज चेंज हो भी सकता है और एवरेज चेंज नहीं भी हो सकता है। आपके ग्रुप का एवरेज 55 kg है, अगर कोई नया पर्सन आएगा उसका वेट 55 kg होगा, तो एवरेज वेट विल नॉट चेंज। आपका वेट 55 kg, नए वाले का वेट 55 kg, तो एवरेज वेट विल नॉट चेंज। अगर कोई हैवी वेट पर्सन आएगा जिसका वेट ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कोई पर्सन आता है 75 kg का या 100 kg का, तो वो आपके एवरेज को इंक्रीज कर देगा। तो हैवी वेट आएगा तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अगर कोई लेस वेट का पर्सन आएगा तो आपका एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी और डिस्कस करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके ग्रुप का वेट 55 kg है और कोई नया पर्सन आता है, हैड इट बीन अगर वो सेम वेट का होगा 55 kg का, तो एवरेज इंपैक्ट नहीं होगा, एवरेज सेम टू सेम रहेगा। एवरेज इज इंक्रीजिंग बाय 1 kg। ठीक है, अभी 20 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज 1 kg से बढ़ गया है। अगर वो 55 kg का होगा तो एवरेज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर वो बेसिकली हैवी वेट होगा, उस वजह से एवरेज बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है, एक तो न्यू स्टूडेंट आ गया, प्लस 20 स्टूडेंट ऑलरेडी थे, 20 + 1, 21 kg वेट उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर इज 55 + 21, दैट इज 76 kg। व्हाट आई एम सेइंग, इनिशियल वेट इज 55 kg। एक बार दोबारा करते हैं। आई थिंक दिस इज मेथड नंबर 1। एक बार पहले मेथड नंबर 1 देख लेते हैं, उसके बाद उस वाले लॉजिक पे दोबारा आते हैं। टोटल वेट इज 20 × 55, which is 1100 kg. The new average becomes 56 kg when a new student joins the group. ठीक है, एवरेज ऑफ 56 kg इज फॉर 21 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स टोटल वेट कितना होगा, 56 × 21 के बराबर हो जाएगा, which is 1176 kg. And then the new weight is 1176 minus 1100, that is 76 kg. और नॉर्मल कैलकुलेटिव मेथड कि एवरेज 55 kg था 20 स्टूडेंट्स का, एवरेज 56 kg हो गया 21 स्टूडेंट्स का, तो माइनस कर देंगे तो उससे उसका आंसर आ जाएगा। What I was talking about, let us look that method, और वो बहुत easy simple method है। Initial average is 20 kg for 20 student for 55 kg. If the weight of a new student being 55 kg, there will be no impact on the average weight of the group. But the average weight of a group of 21 student increases by 1 kg after the joining of a new student. This is only possible when the weight of a new student is more. Simple answer is 55 + 21, that is 76 kg. तो हैवी वेट का पर्सन अगर आ रहा है तो आपके एवरेज को बढ़ा देगा, अगर कम वेट का पर्सन आ रहा है तो एवरेज को ड्रॉप कर देगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर कोई न्यू बंदा एंटर कर रहा है तो उससे वेट बढ़ सकता है और कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका वेट ज़्यादा है या उसका वेट कम है। लेट अस लुक थ्रू these actually आपका in some the important points when a person is joining the group। in case the age of a person, age ले लीजिए, weight ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बात तो सेम ही है। in case the age of a person is more than the average age of the group, average age of the group will increase। अगर आपकी एज कोई दे रखी है, एवरेज एज दे रखी है
कोई अगर ओल्डर बंदा आता है तो आपका एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा। और इस केस में जो न्यू मेंबर का एज क्या होगा, जो प्रीवियस एवरेज था जो भी गिवन था और कितना इंक्रीज हुआ है, और नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द न्यू एवरेज ओनली। अगर वो उसी एज का पर्सन आएगा, लाइक लास्ट क्वेश्चन 55 केजी का पर्सन आएगा, तो एवरेज 55 का 55 ही रहेगा। बट उसने इंक्रीज कितना करा, 1 केजी का इंक्रीज करा है। कितने मेंबर्स का, 21 मेंबर्स का, एक वो खुद का प्लस 20 जो ओल्ड मेंबर्स थे, तो 20 प्लस 1 इज 21 केजी जो है उसका भी ज्यादा था, तो आंसर इज 55 प्लस 21। इसमें एक और केस बन सकता है, इन केस द वेट इज लेस, इन केस द एज इज लेस और वेट इज लेस, एवरेज एज विल डिक्रीज। तो हैवी वाला आएगा तो वो एज को बढ़ा देगा, एवरेज को बढ़ा देगा। लेस वाला आएगा तो एज को घटा भी देगा। अगर लेस वाला पर्सन आएगा तो उसे एवरेज ड्रॉप कर जाएगा। तो एज ऑफ अ न्यू मेंबर इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज माइनस डिक्रीज इन द एवरेज इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द न्यू एवरेज। बिकॉज वो ग्रुप का पार्ट है तो उस मेंबर को इंक्लूड करके हम बात करेंगे। when a person is joining the group उसको इंक्लूड करके बात करेंगे। ये पर्सन विल लीव द ग्रुप, तो एक और दो केसेस और हैं, बट यहाँ पे पर्सन ने एंटर कर लिया है, तो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो पूरे ग्रुप के साथ होगा इंक्लूडिंग दैट मेंबर। ये एक फॉर्मूला टाइप है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगर कोई हैवी वाला पर्सन आ रहा है, चाहे एज की टर्म्स में चाहे वेट की टर्म्स में, तो वो एवरेज को इंक्रीज कर देता है अपने और अपने ग्रुप का। और अगर कोई लेस वाला पर्सन आ रहा है तो वो एवरेज को ड्रॉप कर देता है। तो ये इसका एक सिंपल शॉर्टकट है। मैंने पर्सन इज लीविंग द ग्रुप, अब कोई हैवी वाला पर्सन जाएगा, कोई अगर पर्सन जिसकी एज ज्यादा है, वेट ज्यादा है, उससे क्या होगा, ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा। when the age of a person excluded person is more than the average age of the group, the average of the group will decrease only। आपके एक ग्रुप का अगर एवरेज एज 20 ईयर्स है, कोई टीचर आया वो चला गया, उसकी एज 50 ईयर्स थी, तो आपकी एज जो है ग्रुप का डिक्रीज कर जाएगा, कोई हैवी वाले पार्ट को आपने माइनस कर दिया है। कि सम तो कांस्टेंट है, अगर आप बड़े वाले नंबर को माइनस कर दोगे तो आपका एवरेज एज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और इम्पैक्ट यहाँ पे किस पे आएगा, रिमेनिंग मेंबर्स पे आएगा। एज ऑफ एक्सक्लूडिंग मेंबर इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज प्लस डिक्रीज इन एवरेज प्लस नंबर ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स। क्योंकि वो पर्सन चला जा चुका है, व्हेन द पर्सन इज लेफ्ट द ग्रुप, तो उसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो रिमेनिंग मेंबर्स पर आएगा। इन केस द एज ऑफ एक्सक्लूडेड मेंबर इज लेस, अगर कोई लेस एज वाला पर्सन जाएगा, आपके बैच में किसी की एज बहुत कम है, अगर वो पर्सन चला गया तो एवरेज एज जो है वो ग्रुप की बढ़ जाएगी। उस केस में क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एज ऑफ एक्सक्लूडेड मेंबर, उसकी एज कम होनी चाहिए तो माइनस का साइन आएगा। तो आप ये देखिए कि पर्सन की एज ज्यादा है कि कम है। अगर कोई बड़ी एज का पर्सन जा रहा है आपके ग्रुप से, उस केस में उसकी ज्यादा होनी चाहिए तो हम उसमें ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और इस वाले केस में माइनस का साइन आएगा, बिकॉज एक्सक्लूडेड मेंबर की जो एज होगी वो प्रीवियस वाले एवरेज से कम होनी चाहिए। आई थिंक थ्रू एग्जाम्पल विल अंडरस्टैंड इट मोर, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, अगर वो बड़ा वाला पर्सन चला गया तो आपके ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा, और अगर बड़ा वाला पर्सन, अगर छोटा वाला पर्सन चला गया तो फिर ग्रुप का जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एक लास्ट केस देखते हैं, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन अ पर्सन रिप्लेसेस अनदर पर्सन, देन इफ एवरेज इज इंक्रीज्ड, अगर एवरेज इंक्रीज हुआ है, नया पर्सन आया, उसे एवरेज बढ़ गया है, यानी उसकी एज जो होगी वो पुराने वाले पर्सन की एज से ज्यादा होनी चाहिए। एज ऑफ अ न्यू पर्सन इज एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट एंड इंक्रीज इन एवरेज प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। और in case the average is decrease, then the age of a new person will be equal to age of a person who left minus decrease in the average। So I think through example let us understand कि ये use कैसे करना है। The average price of 20 pen decreases by ₹1 when a new pen price ₹50 is included and existing pen price is removed from the bunch। Find the price of the pen which is removed from the bunch। 20 पेन्स का कुछ प्राइस था, ठीक है, आपने न्यू प्राइस पेन को ऐड करा, ₹50 वाले को ऐड करा, एक पेन को बाहर निकाल दिया, प्राइस ₹1 से डिक्रीज कर गया, नंबर ऑफ पेन्स तो कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस ₹1 कितनों पे इंपैक्ट आएगा, 20 पेन्स पे इंपैक्ट आएगा। अब 20 पेन का प्राइस अगर ₹20 से कम हो गया है, दैट मीन जिस पेन को हमने रिमूव करा है उसका प्राइस हायर होना चाहिए। 50 प्लस 20 इज 70। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी मैथमेटिकल वे, डायरेक्टली वी कैन से हमने एक एंट्री हो रही है ₹50 की, एक एक्सक्लूजन हो रहा है। इम्पैक्ट कितना आएगा, इम्पैक्ट -20 होना चाहिए। तो 50 को ऐड करा है प्लस 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू -20, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, ₹70 आ जाएगा। एक ग्रुप का एवरेज डिक्रीज हो गया है, तो एवरेज डिक्रीज हो गया है ₹1 से, दैट मीन उसका प्राइस जो है वो हायर होना चाहिए था, तभी तो ग्रुप का एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी 70।
The average score of a group of 15 students is 80. When one of the group member leaves the group, the average score of the group come down by 1. What is score of the person who left the group? आपके एक क्लास थी, उनका एवरेज स्कोर 80 था। एक पर्सन के जाने से एवरेज कम हो गया। ये कब होगा? जब शार्प वाला बच्चा चला जाएगा, जो अच्छा बच्चा है वो चला जाएगा। तो उसके जाने से कितनों पे इम्पैक्ट आएगा? 14 पे इम्पैक्ट आएगा। 14 का इम्पैक्ट कितना है? 1 मार्क है। तो कुल कितना इम्पैक्ट हुआ? 14 मार्क्स का इम्पैक्ट हुआ। 80 plus 14 is 94. So answer is person who left the group is having a score of 94 only. The student who is leaving the group is a score of 80. Average will not change. But because he has left, the average come down by 1 mark of remaining 14 members. His score should be 14 more than the initial average. That is 14 plus 80 is 94 marks. So इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The average score of a group of 15 members, मैथमेटिकल वे इसका देख लेते हैं, वो क्या हो सकता है? एवरेज स्कोर है 15 स्टूडेंट्स का 80 मार्क्स। टोटल स्कोर कितना होगा? 80 into 15 is 1200. Let us assume the student who left the group having a score of P marks. 1200 minus P upon 14 members, average is 79. इससे भी P को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। See, anyhow the formula is always available, but without any multiplication, without division हम अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एडवांटेज ऑफ दैट पार्ट वॉज कि हम उस वाले तरीके का अगर यूज करेंगे तो हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बाकी फिर कैलकुलेट यहाँ से भी जो P है उसका आंसर जो है वो 94 मार्क्स आ ही जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन 1950 the average age of a family members of 20 members is 38 years. In 1957, a family member age 60 died and child was born in the family. In 1961, another family members of the age 80 died and the child was born in the family. If there are no other changes, what is the average age of the family in 1970? In most of averages question, you have two options: full calculation method and an easy or better method. So let's discuss both the ways कि दोनों तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। First method. In 1950, the average age of 20 members of the family is 38 years. Given है। Sum कितना होगा? 38 into 20 is 760 years. 20 members का average 38 years है। Average is sum upon count. तो sum कितना आएगा? 38 into 20 is 760 years. In 1957, in 7 years, everybody will grow by 7 years. 20 members. तो growth कितनी होगी? 7 into 20 is 140 years. एवरी मेंबर इज इंक्रीजिंग, हर मेंबर की एज इंक्रीज होगी। 7 साल इंक्रीज होगी 20 मेंबर्स की एज 1957 तक। उसके में 60 ईयर्स वाला पर्सन डाई कर रहा है तो -60 एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली। नंबर ऑफ मेंबर तो सेम रहेंगे बट एज कितना हो जाएगा? 840 ईयर्स हो जाएगा। 760 पहले था, 50 से 57 तक 7 साल तक 7 साल में 20 लोगों की एज जो है वो 140 ईयर्स बढ़ जाएगी। -60 इज इक्वल टू 840 ईयर्स। इन 1961 सिमिलर लॉजिक, एक मेंबर जो है 80 ईयर्स का डाई कर रहा है और 4 साल में एज कितना ग्रो करेगा? 4 साल में 4 into 20 का एज ग्रो करेगा तो एज जो हो जाएगा 80 कट जाएगा, आंसर 840 ईयर्स ही रहेगा। इन 1970 अब एज कितना ग्रो करेगा? 9 ईयर्स में हर मेंबर की एज 20 साल ग्रो, हर मेंबर की एज 9 साल ग्रो कर जाएगी। 20 मेंबर्स हैं तो नेट जो एज होगी वो होगी 840 plus 180. 840 plus 180 will be 1020 years. That means overall age will be 51 years. और नॉर्मल कैलकुलेटिव मेथड और टाइम कंज्यूमिंग मेथड जहाँ हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं। बट एज यू नो एवरेजेस में सेकंड लॉजिक भी हमेशा ईजी होता है और सेकंड लॉजिक से अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जल्दी से आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन शॉर्टकट देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे 38 ईयर्स इनका एवरेज एज है 1950 में, 1970 में इफ देयर इज नो इम्पैक्ट, अगर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता तो एवरेज 20 साल बढ़ जाता। 38 प्लस 20 58 ईयर्स इनका एवरेज होता अगर कोई भी डेथ और कुछ भी अगर ये केस नहीं होता तो मेरा एवरेज जो है 58 ईयर्स के बराबर होगा। बट बेसिकली वन मेंबर इज डाइंग एट एन एज ऑफ 60, एक 60 साल का पर्सन मर रहा है, जा रहा है, डाई हो रहा है, और एक 80 ईयर्स का पर्सन डाई हो रहा है। ओवरऑल मेरी एज 140 से डिक्रीज होनी चाहिए। 60 प्लस 80 140 से मेरा एज कम हो जाएगा। 140 का इम्पैक्ट कितने लोगों पर आएगा? 20 मेंबर्स पर आएगा। 140 अपॉन 20
सिंपल इज 7 साल एज कम होगी, आंसर इज 58 माइनस 7, इट इज 51 ईयर्स। तो यू हैव टू ऑप्शंस, द फुल कैलकुलेशन पूरा करते जाओ 50 से 57, फिर 61, फिर 70 एंड सो फोर्थ। अदरवाइज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज वेरी वेरी इजी, दैट सेज कि फ्रॉम 1950 टू 1970 20 साल में एवरेज 20 साल ग्रो होनी चाहिए थी, बिकॉज एवरी मेंबर विल ग्रो बाय 20 ईयर्स, तो 38 बिकम 58 ओनली। बट दो मेंबर्स ट्राई कर रहे हैं, एक 60 ईयर्स का और एक 80 ईयर्स का, तो एवरेज जो है वो 140 ईयर्स 20 पे इम्पैक्ट आएगा। 140 अपॉन 20 इज 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स माइनस कर देंगे, आंसर इज 51 ईयर्स ओनली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए, सो प्लीज सॉल्व करते हैं। A set contains 100 positive integers. If the largest of the number is excluded, average will reduce by 3. If smallest of the number is excluded, the average will increases by 4. If ratio of largest and smallest number is 9:2, find the smallest number. Average given नहीं है, तो first method, let the average being A. If largest number is 9x and smallest number is 2x, दो नंबर को एक्सक्लूड करना है, एक बार ओनली लार्जेस्ट को एक्सक्लूड करना है, एक बार ओनली स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सक्लूड करना है। एक नंबर 9x है, एक नंबर 2x है, अगर इनको एक्सक्लूड करते हैं इक्वेशंस क्या बन सकती हैं? 100a इज माई सम, तो 100a माइनस 9x, दिस इज फॉर 99 नंबर्स, एवरेज विल रिड्यूस बाय 3, a माइनस 3 हो जाएगा। 100a माइनस 2x upon 99, average will increase by 4. So that is the second equation. If I solve both the equations, I'll be getting x to be 99. Simply इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो उससे a और x में दो इक्वेशन रह जाएंगी। इफ यू सॉल्व x की 99 आ जाएगी। इफ x is 99, आंसर विल बी 2 into x, दैट इज 2 into 99 is 198. तो वन बिंग अ प्रॉपर कैलकुलेटिव मेथड, जहाँ पे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो बाय फ्रेमिंग द इक्वेशन। इन द लास्ट मोस्ट क्वेश्चन वी हैव सीन, जो फ्रेम कर लीजिए इक्वेशन को, दैट इज वन ऑफ द वे। ऑल्टरनेटिवली इसका एक अप्रोच और भी है। चेंज कितना है? एक नंबर +4 पर है, अगर 0 इज माई रेफरेंस, एक नंबर से अगर हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, a से a+4 हो जाएगा एवरेज, पॉइंट नंबर 1। अगले केस में एवरेज a से a-3 हो जाएगा, तो a इज माई सेंट्रल नंबर, एक में a+4, एक में a-3। डिफरेंस ऑफ a+4 एंड a-3 इज 7, तो डिफरेंस इज 7 फॉर हाउ मेनी नंबर्स? फॉर 99 नंबर्स, द चेंज इज फॉर 99 नंबर्स। 7 का डिफरेंस आएगा, अगर हम एक को +4 को -3 पे लेके जाते हैं, तो माई नेट चेंज विल बी 99 इंटू 7 इज 693। ये मेरा ओवरऑल डिफरेंस आएगा। आई रिपीट माई पॉइंट, एक a+4 पर है, एक a-3 पर है, तो डिफरेंस इज 7 फॉर 99 नंबर्स। तो डिफरेंस कितना होगा? 693 का डिफरेंस होगा, 99 इंटू 7 इज 693। और डिफरेंस इन नंबर्स कितना है? 9x एंड 2x, तो डिफरेंस कितना होगा? 7x के बराबर होगा। तो अगर रेशियो अगर 4:9 के फॉर्म में है, जो डिफरेंस होगा वो 7x के बराबर होगा। 7x जो है वो 693 के बराबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2/7 of 693, that is 2 into 99, that is 198 only. So answer is same. So we have seen in most of these questions, either you frame the proper equation in all those previous questions, then also the answer will be same. But with these tricks and techniques, it become very easy to solve these questions. तो वही मेन आइडिया है। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, इसको भी फिनिश करते हैं, उसके बाद आई थिंक अगले क्लास बाद में करेंगे। तो कंसिडर सेट ऑफ S where S is 2, 3, 4, 2n plus 1. X is the average of odd numbers, Y is the average of even numbers. What is the value of X minus Y? It's a very good example of actually average AP series. AP series का यूज करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो 2, 3, 4 till 2n plus 1, ऑड नंबर्स का एवरेज, फर्स्ट नंबर है 3, लास्ट नंबर है 2n plus 1, एवरेज क्या होगा? a plus l/2, तो इनका एवरेज n+2 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट नंबर 2n plus 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इन दिस एवरेज विल बी 2n plus 1 plus 3/2, दैट इज n+2, तो ये इसका एवरेज होगा, x की वैल्यू होगी। y इज द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, y इज द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 2n, तो उसका एवरेज क्या होगा? n+1, n+2 and n+1, the difference of these two numbers is actually 1 only. So with this way, we can solve this question.
So concepts in average is very, very important. I hope if you understood those concepts, solving this question is very easy with the concept method. With actual formula method or with actually those tricky formula things will not be helpful. So concepts are very important. Deviation method, AP series. If somebody will come जिसका higher number होगा तो ग्रुप के एवरेज को बढ़ा देगा और ग्रुप के एवरेज को कम कर देगा. तो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दिस कॉन्सेप्ट पार्ट, क्वेश्चन बिकम मोर और मोर इजी. इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द वेटेड एवरेज. वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन में वो यूज होता है. तो आई होप आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं. जो भी उसमें अरेंजमेंट होगा डाउट्स का वो मैम आपको सर आपको बता देंगे कि वो डाउट्स कैसे अरेंज कर सकते हैं. ओके, तो ये क्लास यहाँ फिनिश करते हैं और फिर अगली क्लास में विल स्टार्ट द वेटेड एवरेज पार्ट. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम क्लासेस. I hope all of you are set for today's class. Today is a continuation class of averages, mixtures and alligation. Last time I have discussed the basics of averages where the simple average or arithmetic mean was there and associated questions were there. In today's class I'll discuss about the question based on weighted average and alligation. This is a part 2 of AMA class or average, mixture and alligation class. The handout code is QAHO 1002109. So let's start today's class. Suppose there are two numbers are given, 25 and 35. The normal average is 30 only. 25 and 35 is given. Simple average is 30, a plus b by 2. But suppose if I assign one more weight towards the left hand side. So if I assign one more weight towards the left hand side, I can say my average will be 25 plus 25 plus 35. That is 85 by 3. That is 28.33. But what is more important, the average will shift towards left hand side. 25 and 25, मेरा एवरेज नॉर्मली 30 था. अगर मैंने यहाँ पे वेट बढ़ा दूंगा तो मेरा एवरेज जो है वो इस साइड शिफ्ट कर जाएगा. एवरेज बिकम 28.33. इफ आई इंक्रीज और इफ आई पुट द वेट ऑन 35 साइड, तो मेरा एवरेज उस साइड अगर 35 पुट करेंगे, माई एवरेज विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड. बेसिकली आई एम बेसिकली कमिंग टू द वेटेड एवरेज पार्ट. Now last time was simple average, average of 2 numbers, average of 3 numbers, average of 5 numbers. In weighted average actually it is about group of आपका average. पूरे ग्रुप का एवरेज क्या हो सकता है. तो बेसिकली अगर आपके क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं या दो ग्रुप्स हैं, एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है. तो बॉयज के ग्रुप का कुछ स्कोर दे रखा है सपोज 25, गर्ल्स के ग्रुप का ग्रुप स्कोर दे रखा है 35. अगर बॉयज और गर्ल्स इक्वल होंगे कि अगर 1 और 1 होंगे या 5 और 5 भी होंगे, इक्वल होंगे, आंसर कितना होगा 30 के बराबर. अभी हम इक्वल लेके बात करते हैं. अगर 1 और 1 होंगे उस केस में आंसर क्या होगा 35 के बराबर होगा. इफ 2 बॉयज आर देयर एंड 1 गर्ल इज देयर, एवरेज विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड. इफ 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर देयर, एवरेज विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड. तो ये वेटेड एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं फोकस करवा रहा हूँ और इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स. बट यहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करेंगे. वेटेड एवरेज एक्चुअली इज द एवरेज ऑफ ग्रुप्स ओनली. So there are 2 groups are given, there are 3 groups are given. Suppose in a subject or in any आपका class, there are 3 sections are there, section A, section B, section C. So what we talk about actually कि इन सारे sections में कुछ कुछ groups बने होंगे. तो उन सारे groups का average कितना होगा, वो ही हमारे इस topic का purpose है. So basically कुछ properties हैं, पहले वो देखते हैं, उसको फॉर्मूले पर आते हैं. If frequencies are same, it will work as a normal average. अगर boys और girls बराबर हैं और बॉयज का स्कोर 25 है, गर्ल्स का स्कोर 35 है, आंसर क्या होगा सिंपल एवरेज a प्लस बी बाई 2 ओनली 25 प्लस 35 बाई 2. इफ इट इज 1 and 1 तो भी वही होगा. इफ इट इज 5 and 5 तो भी वही होगा. 10 and 10 तो भी वही आंसर होगा. इट विल वर्क एज अ नॉर्मल एवरेज ओनली. द वेटेड एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. विल नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू एंड इट कांट बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू. तो आंसर जो है मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगा. सपोज 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. इनका एवरेज स्कोर दे रखा है. एक का स्कोर 40, एक का स्कोर 50, एक का स्कोर 60. आप अगर एवरेज निकालोगे तीनों ग्रुप्स का, इट कांट बी लेस देन 40 एंड इट कांट बी मोर देन 60. आंसर विल ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. वी कांट से आंसर इज ऑलवेज 50. रीजन बीइंग स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकते हैं. तो सेक्शन ए जिसका 40 है
वहाँ पे स्टूडेंट्स कैन बी मोर, कैन बी लेस, कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सेम अगर 60 वाले में स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो आंसर टुवर्ड 60 साइड आएगा। अगर तीनों में बराबर स्टूडेंट्स होंगे 40, 50, 60, if frequencies are same, it will work as a normal average only. तब directly we can say average will be 40 plus 50 plus 60 by 3. But basically the idea is कि in weighted average it will lie between the minimum value and the maximum value. Next, the weighted average will be toward that side of a weight which has more frequency. जिसका weight ज़्यादा होगा आपका average वहीं साइड swing कर जाएगा। जब लास्ट एग्जाम्पल लिया था 25 एंड 25 का दो वैल्यूज हैं, 35 की वन वैल्यू है, तो एवरेज जो है वो टुवर्ड्स 25 साइड शिफ्ट कर जाएगा और आंसर विल बी बिटवीन द लीस्ट वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज कब होगा? व्हेन द वेट्स आर इक्वल। अगर यहाँ वेट बढ़ा देंगे तो एवरेज इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, अगर यहाँ वेट बढ़ा देंगे तो एवरेज इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो वेटेड एवरेज विल बी टुवर्ड दैट साइड ऑफ अ वेट विच हैज मोर फ्रीक्वेंसी। तो आपका वेट जो है उस साइड स्विंग कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। While finding weighted average, we can also take the ratio of all the frequencies or weights. In such questions, हम ratio लेके भी solve कर सकते हैं। I'll take a suitable example जहाँ पे I'll discuss this point, but ये एक property है कि हम इसमें ratio लेके solve करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। And difference in the weighted mean is equal to weighted mean of the difference. ये भी कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होगा। अगर दो ग्रुप्स दे रखे हैं, उन दोनों ग्रुप्स का मुझे डिफरेंस निकालना है, उनके एवरेज का डिफरेंस निकालना है, पहले वाले ग्रुप का और सेकंड वाले ग्रुप का। वो एक इसके इक्वल्स होगा, वो वेटेड मीन ऑफ डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये भी बेसिकली इक्वल है। तो आई थिंक बिफोर मूविंग फर्दर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, द वेटेड एवरेज और वेटेड अरिथमेटिक मीन। इफ फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एंड एवरेजेस आर गिवन, तो ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3, fn, whose weights are x1, x2, x3 and xn. So to find the weighted average हम उसको corresponding frequency से multiply करते हैं, f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 till fn xn upon f1 plus f2 plus f3 till fn only. A simple example, अगर एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं, एक क्लास में बॉयज हैं 20, उनका स्कोर है 25, 20 बॉयज 25 उनका स्कोर है। एक क्लास में गर्ल्स हैं 200 और उनका स्कोर है 35। व्हाट विल बी डूइंग? 20 स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी इनटू उनका स्कोर 25 प्लस 200 गर्ल्स उनका फ्रीक्वेंसी 35, उनका वैल्यू 35 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 20 प्लस 200। तो यही फॉर्मूला है वेटेड एवरेज का, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 till fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 till fn ओनली। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम वो नंबर आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। और एवरेज वैल्यू मीन्स उसका कुछ ग्रुप का एवरेज गिवन होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी इज गिवन, तो उनका एवरेज गिवन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे f1 x1 प्लस f2 x2। बट लेट अस डिस्कस दोस प्रॉपर्टीज वन बाय वन जो मैंने बताई थी। If frequencies are same, it will work as a normal average. इसका क्या मतलब था, एक बार उसको दोबारा देखते हैं। Suppose that there are two classes. There are 37 students in each of the class A and class B. The average marks obtained by class A and class B is 40 and 50 marks respectively. Find the weighted average. अब दो क्लासेस हैं, क्लास A और क्लास B। क्लास A में बराबर स्टूडेंट्स हैं A और B में 37 एंड 37 और उनका स्कोर गिवन है 40 एंड 50। उस केस में वेटेड एवरेज क्या होगा? Now, a normal approach will be a simple formula 37 into 40 plus 37 into 50 upon 37 and 37. Frequency क्या है? 37 स्टूडेंट्स हैं। कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? 37 स्टूडेंट्स हैं। तो 37 into 40, 37 into 50 upon 37 and 37. But what you will see कि ये नंबर तो कट जाएगा, 37 कॉमन आके 40 plus 50 upon 2 बन जाएगा, तो ये नंबर कट जाएगा यहाँ पर। तो one simple thing we can say, if the weights are equal, अगर equally स्टूडेंट्स हैं, it is normal average only, a plus b by 2. 40 plus 50 by 2, that is simple, 45 marks. So without going into much detail, I can simply calculate a normal average, a plus b upon 2. a plus b upon 2, that is simple, 45 marks only. तो ये इसमें वर्क कर सकता है। यही प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसीज आर सेम, इट विल वर्क एज अ नॉर्मल एवरेज। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर कर सकते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑलवेज लाई बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंडिविजुअल एवरेज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि average age of all the girls in a class of 42 students is 13. Average age of all the boys in the class is 16. Boys as well as 23 of the boys is 16. The following can be the average age of all the students in the class. तो गर्ल्स का एवरेज दे रखा है 13, कितनी गर्ल्स हैं नहीं पता है,
बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, कितना एवरेज है 16, कितने बॉयज़ हैं वो भी नहीं पता है, बट मिनिमम 23 बॉयज़ हैं। द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज़ एज वेल एज 23 ऑफ द बॉयज़, कम से कम 23 बॉयज़ तो हैं। जो द फॉलोइंग कैन बी द एवरेज। अब मिनिमम कितना है 13, मैक्सिमम कितना है 16। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ये ऑप्शंस गिवन है तो 15, 17, 18 एंड 12। आंसर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। 13 और 16 के बीच में एक ही ऑप्शन दे रखा है विच इज 50। तो यही यहाँ पे टेस्ट करना था कि आपको ये आइडिया है कि नहीं है। तो एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाया करेगा। अगर सारी गर्ल्स होंगी स्टूडेंट्स में तो एवरेज 13 का 13 रहेगा। अगर सारे बॉयज होंगे एवरेज 16 रहेगा। तो आंसर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाया करेगा। 13 से कम नहीं हो सकता, 16 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो 15 आएगा इस केस में। तो आंसर इज ए ऑप्शन। एवरेज 13 और 16 के बीच में लाई करेगा, ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाई। तो ये प्रॉपर्टी है, द वेटेड एवरेज विल लाई बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। द वेटेड एवरेज विल बी टुवर्ड दैट साइड ऑफ अ वेट व्हिच हैज मोर फ्रीक्वेंसी। एक सिमिलर एग्जाम्पल, वैसा एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने चेंज कर दिए हैं। द एवरेज एज ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ द क्लास इज 13 years. Average age of all the boys as well 23 of the boys is 16 years. Which of the following can be the average age of all the students in the class? तो गर्ल्स का एवरेज मुझे पता है, बॉयज का एवरेज मुझे पता है 13 और 16। 13 और 16 मींस एवरेज 13 और 16 के बीच में लाया करेगा। बट यहाँ पे सारे ही आंसर्स जो है 13 और 16 के बीच में गिवन है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। अब इस क्लास में कितने बॉयज हैं? तो गर्ल्स का एवरेज 13 ईयर्स है, बॉयज का एवरेज 16 ईयर्स है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? मिनिमम 23। यहाँ पे बोला हुआ है एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज एज वेल एज 23 ऑफ द बॉयज। कम से कम 23 बॉयज तो होंगे ही होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? मैक्सिमम 19। तो 23 बॉयज होंगे तो 19 गर्ल्स होंगी। 24 होगा तो 18 हो जाएंगी, 29 होगा तो कम हो जाएंगी और कम होती जाएंगी। तो 23 बॉयज मिनिमम है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? मैक्सिमम 19 होंगी। अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर होते 13 एंड 16, आंसर कहाँ पे होता? 14.5 होता, a प्लस बी बाई 2 होता। तो आंसर 14.5 के आसपास आएगा अगर गर्ल्स और बॉयज बराबर होंगे। तो गर्ल्स का वैल्यू कितना है? 13, बॉयज कितना है? 16। 13 प्लस 16 अपॉन 2, तो आंसर विल बी 14.5 ओनली। बट बिकॉज यहाँ बॉयज ज्यादा हैं और बॉयज का एज भी ज्यादा है 16 ईयर्स, तो आंसर जो है 14.5 से बड़ा होगा। आंसर विल स्विंग टूवर्ड दैट साइड। आप ये मान लीजिए 13 यहाँ पर एक वैल्यू है, 16 यहाँ पर एक वैल्यू है। अगर वेट बराबर है आंसर 14.5 आ जाएगा। अब बॉयज अगर ज्यादा हो गए यहाँ पे, उस केस में जो आंसर है वो इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। आंसर 14.5 से 16 के बीच में आएगा। फॉर दैट ओनली वन ऑप्शन इज गिवन। If boys are more, average will shift towards 16. Answer is between 14.5 to 16. That is only 15 is a possible. Okay. Next. While finding the weighted average, we can also take the ratio of all the frequencies or weights. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी, 34 स्टूडेंट्स इन क्लास ए, 51 स्टूडेंट्स इन क्लास बी। इनके एवरेज मार्क्स गिवन है। फाइंड द वेटेड एवरेज। दो क्लासेस गिवन है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स 40 और 50 हैं। तो नॉर्मल अप्रोच विल बी 34 स्टूडेंट्स इंटू 40, 51 स्टूडेंट्स इंटू 50 अपॉन 34 प्लस 51। इससे हम नॉर्मल तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शॉर्टकट इज 34 एंड 51, इसका रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हैं। इनका रेशियो आएगा 2:3। 34 and 51, this ratio is 2:3. For getting same answer, we can only do the ratio of these two numbers. 2 into 40 plus 3 into 50 upon 5. Answer same ही आएगा। तो what the main key thing here, जो frequencies हैं हम उनका रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या थी? 34 and 51। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम उनका रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हैं। 34 into and 51, the ratio is 2:3। तो आंसर जो है इस केस में मेरा सेम ही आएगा। आंसर इज 46 मार्क्स। डिफरेंस इन द वेटेड मीन इज इक्वल टू वेटेड मीन ऑफ द डिफरेंस। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात बराबर होगा। सपोज देयर आर टू पेपर्स इन एग्जाम। पेपर 1 is of 90 marks, paper 2 is of 135 marks. A and B appeared for the exam and got the following percentage of marks.
ए का स्कोर है 68% एंड 53%, यहाँ पे स्कोर है 38% एंड 78%। दो पेपर्स ए ने दिए, दो पेपर्स बी ने दिए, और ए और बी ने जो पेपर्स दिए हैं उनका मुझे परसेंटेज गिवन है। हमें क्या बताना है, इनके वेटेड मीन का डिफरेंस बताना है। ओवरऑल परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस बताना है ए और बी में कितना होगा। तो इसके मार्क्स है 90, इसके मार्क्स है 135। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि हम ए का एवरेज निकाल लें और बी का एवरेज निकाल लें, और फिर ए और बी का एवरेज करके माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज कि हमने ए का एवरेज निकाल दिया। अब मार्क्स कितने हैं पेपर्स के, 90 और 135, तो इनका रेशियो क्या होगा, 2:3 के बराबर होगा। तो एक 2 होगा, एक 3 होगा, तो 2 इंटू 68 प्लस 3 इंटू 38 अपॉन 5, 2 इंटू 68 प्लस 3 इंटू 38 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 50%। इससे ए का स्कोर आ जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बी 2 इंटू 53 प्लस 3 इंटू 78 अपॉन 5, तो 68% आ जाएगा। हमें दो स्टूडेंट्स के वेटेड एवरेज का डिफरेंस बताना है। तो दो स्टूडेंट्स का डिफरेंस बताना है वेटेड एवरेज का, तो मैंने ए का वेटेड एवरेज निकाल दिया और मैंने बी का वेटेड एवरेज निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस ऑफ पॉइंट कितना होगा, 18 पॉइंट्स के बराबर होगा। बट अ बेटर मेथड इज, यहाँ पर हम डिफरेंस पहले निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस पहले निकालेंगे, यानी ए और बी में कितना डिफरेंस है, तो मैं बी माइनस ए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 53 माइनस 68 इज बेसिकली माइनस 15, और 78 माइनस 38 इज बेसिकली 40। तो 40 इंटू 3 and 2 into minus 15 is basically is my straightforward answer. तो difference in the weighted mean is equal to weighted mean of the difference. ये is missing नहीं है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये पार्ट यहाँ पे काट दीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। बेसिकली डिफरेंस इन weighted mean of the difference डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन से कि ये और ये बराबर होते हैं। तो अगर ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं, मैंने ए का डिफरेंस निकाला और बी का डिफरेंस निकाला, 50 और 68 डिफरेंस 18% के बराबर आ गया। तो मैंने ए के लिए ए का वेटेड एवरेज यूज करा, बी के लिए बी का वेटेड एवरेज यूज करा। बट शॉर्टकट इज, इस वाले केस में हम डायरेक्ट परसेंटेज का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 53 और 68 विच इज माइनस 15, 78 और 38 विच इज 40, 40 इंटू 3 एंड 2 इंटू माइनस 15 अपॉन 5, the answer will be 120 minus 30, 90 upon 5, that is 18 points. तो वो 18 परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ओवरऑल द आइडिया इज टू मिनिमाइज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन अगर मिनिमम हो सकती है तो वो हमें यूज करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। नाउ डेविएशन मेथड हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, जहाँ पर हम कोई नंबर लेके अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में भी, इस टॉपिक में भी हम इसको डिस्कस करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर ए गिवन है, एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स में कुछ परसेंटेज स्कोर गिवन है, तो पेपर 1, पेपर 2, 5 पेपर्स में कुछ आपका स्कोर गिवन है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, 62%, 64%, 58%, 56% एंड 68%। हमें नेट परसेंटेज निकालना है। नॉर्मल मेथड इज वेरी डिफिकल्ट कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, इज वेरी लेंथी मेथड। तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे डेविएशन अप्रोच यूज कर सकते हैं कि डेविएशन क्या है, चेंज कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल नंबर। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे इसमें एक अज्यूम मीन ले सकते हैं 62% का। एज आई डिस्कस इन लास्ट क्लास ऑल्सो कि हम अज्यूम मीन लेके सॉल्व करते हैं। 62% इज माई अज्यूम मीन। अब कितना डिफरेंस है, 62 एंड 62 0, 64 and 62 is plus 2%, 58 and 62 minus 4%, 56 and 62 is minus 6%, 68 and 62 is plus 6%. तो हमने ये नंबर निकाल लिए। वन मोर थिंग, हम इन वेट्स का रेशियो ले सकते हैं। तो 180, 90, 135, 180 एंड 45 सारे नंबर्स 45 से डिविजिबल हैं। If we divide them by 45, the ratio will come out to be 4, 2, 3, 4, 1. ये रेशियो आएगा 4:2:3:4:1। Now what you can do, हमारा अज्यूम मीन कितना है 62%, वो तो मेरा आंसर होगा ही होगा, या तो उसमें सरप्लस होगा या डेफिशिएंट होगा। तो कितना होगा 4 इंटू 0%, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी लेंथी प्रोसीजर। व्हाट आई एम मल्टीप्लाइंग 4 इंटू 0, 2 इंटू 2, 3 इंटू -4, 4 इंटू -6 एंड 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 14। So 62% plus 4 into 0 plus 2 into 2 plus 3 into -4 plus 4 into -6 plus 1 into 6 divided by 14. If you calculate with that thing, answer will be 60.14%.
आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, उससे भी सेम आंसर आता है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी सेम ही आंसर आता है। बट डायरेक्ट शॉर्टकट इज कि विदाउट कैलकुलेटिंग टू मच हम यहाँ पे एक अज्यूम मीन मान सकते हैं 62%। दिस कैलकुलेशन इज वेरी इजी। 4 into 0, 2 into 2, 3 into -4, 4 into -6 and 1 into 6 divided by 14, that answer will be 60.14%. So it's a very simple way to solve this question. तो इन सारे क्वेश्चंस का यूज करते हैं थ्रू आपका डिफरेंट एग्जांपल्स की इसका कैसे यूज करना है और कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो इन अ क्लास देयर 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। गर्ल्स का स्कोर गिवन है, बॉयज का स्कोर गिवन है, एवरेज स्कोर बताना है। 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, गर्ल्स का स्कोर पता है, बॉयज का स्कोर पता है, सिंपल वेटेड एवरेज। सो गर्ल्स का स्कोर 20 into 80, बॉयज का स्कोर 30 into 90, a simple weighted average will be f1 into x1 plus f2 into x2 upon f1 plus s2। एवरेज स्कोर पर स्टूडेंट तुम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 20 and 30, that will be 50। आंसर इज 4300 upon 50, that is 86 only। a simple weighted average question। आपको स्टूडेंट्स गिवन है, उनके मार्क्स गिवन है, हमें पूरा एवरेज निकालना था। नेक्स्ट, average marks obtained by the boys and girls in the class is 50 and 60। Ratio of number of boys and girls in the class is 3:2। Find the average marks obtained by A and B। अब क्वेश्चन 9th A और 9th B दोनों एक साथ गिवन है और उसमें माइन्यूट वेरिएशन गिवन है और हमें देखना है किस रेशियो से हमारा आंसर आएगा, कि क्या रेशियो गिवन होगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 3x and 2x, बॉयज हैं 3x और गर्ल्स हैं 2x। बॉयज का स्कोर है 50, गर्ल्स का स्कोर है 60। तो एवरेज स्कोर कितना होगा, एवरेज स्कोर जो होगा वो होगा 3x into 50 plus 2x into 60 upon 5x। तो विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मेरा आंसर तो भी आ जाएगा। मैंने पहले पॉइंट एक रिपीट भी करा था कि हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो गिवन है 3 और 2, 3 और 2 लेके सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, और 3x and 2x लेके सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है। द आंसर इज 54 मार्क्स। तो 3x into 50 plus 2x into 60 upon 5x, average will come out to be 54। But the important part is अगर मार्क्स का रेशियो गिवन है 3:2 और नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो एवरेज मार्क्स क्लास के कितने होंगे। तो मार्क्स का रेशियो गिवन है 3:2। आई थिंक डायरेक्टली कहना है इससे कि इसका आंसर तो आ ही नहीं सकता। बहुत सबको मार्क्स ही नहीं पता है। अगर दो क्लासेस हैं और उनके मार्क्स का रेशियो 3:2 है, दो ग्रुप्स हैं उनके मार्क्स का रेशियो 3:2 है, अब मार्क्स 300 और 200 हो सकते हैं, 30 and 20 हो सकते हैं। एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। डायरेक्टली वी कैन से अगर इसमें भी अगर उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे। अब 3x जो है वो मार्क्स हैं किसके, बॉयज के, 2x जो है वो मार्क्स हैं गर्ल्स के। तो 3x into 30 plus 2x into 20 अपॉन टोटल 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये। तो माई आंसर विल बी 2.6x। आंसर x की फॉर्म में आएगा। मैं डायरेक्टली बता चुका था कि आंसर इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग इस वाले केस में मार्क्स गिवन ही नहीं है। तो अंटिल मार्क्स गिवन ही नहीं होंगे तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो ही नहीं सकते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि हम फ्रीक्वेंसीज का रेशियो ले सकते हैं। 9th A फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन था, कितने नंबर्स हैं, हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो ले सकते हैं, वो लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट अगर मुझे जिसका एवरेज लेना है, अगर मुझे उन्हीं नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम आंसर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आंसर विल बी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CBD आंसर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मार्क्स वाला क्वेश्चन, एवरेज हम बहुत जगह यूज करते हैं। एवरेज सैलरी हो सकती है, एवरेज इनकम हो सकती है, एवरेज बहुत जगह हम यूज करने वाले हैं। तो वन मोर वेरिएशन इज, बस पढ़ लीजिए प्लीज। In an office, there are 60 senior executives and there are some junior executives are there. Average salary of all the executives is given. Average salary of senior executive is given and junior executive is given. Find a number of junior executive. जो फॉर्मूला होता है F1 x1 plus F2 x2 upon F1 plus F2 is a net average। अब F1 पता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पता है, उनकी वैल्यू पता है, कितनी उनकी सैलरी है वो पता है, x1 पता है, x2 भी पता है, एवरेज भी पता है। आपको F2 कैलकुलेट करना है तो आई थिंक वो फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। लेट नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉइज बीइंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव बीइंग x। 60 एम्प्लॉइज की सैलरी 45 लैक्स है, ये सीनियर वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं, 60 into 45 लैक्स प्लस जूनियर एम्प्लॉयज की सैलरी 9 लाख रुपीज है, x into 9 lakhs।
अपॉन टोटल सैलरी. सिंपल फॉर्मूला, F1x1 प्लस F2x2 अपॉन F1 प्लस F2 इज द ओवरऑल एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी इज हाउ मच? 15 लाख रुपीज. इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी. x विल कम आउट टू बी 300 ओनली. So in weighted average, F1x1 plus F2x2 upon F1 plus F2 is the net average out of these five variable, F1, X1, F2, X2 and average, central average or weighted average, any four things can be given. If 4 or 3 things are given, आप उसको solve कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे यूजफुल है टू गेट द आंसर. कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है. आई थिंक इसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन वंस अगेन विद एलिगेशन मेथड. थ्रू एलिगेशन भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा. तो इसको हम बाद में एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. there are 3 sections in a class x, y and z और उनके नंबर्स गिवन है 36, 54 एंड 90. एवरेज मार्क्स गिवन है 65, 75 एंड 85. व्हाट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. तो स्टूडेंट रेशियो क्या है? 36, 54 एंड 90. तो स्टूडेंट रेशियो है 4, 6 और 10. और मार्क्स क्या है? 65, 75 और 85. मेरा आंसर आएगा 4x इंटू 65 प्लस 6x इंटू 75 प्लस 10x इंटू 85 अपॉन 4x प्लस 6x प्लस 10x. सेम थिंग आई डिस्कस फॉर आपका टाइप ऑफ आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे वो 3 ग्रुप्स के लिए गिवन है फॉर 3 सेक्शंस. सिमिलर लॉजिक है, सिमिलर मेथड है कि 4x इंटू 65 प्लस 6x इंटू 75 प्लस 10x इंटू 85 अपॉन 4x प्लस 6x प्लस 10x. तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस. उसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करके आंसर विल बी 78 मार्क्स. इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक और एग्जांपल है, ये हम एवरेज कॉस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं जहां भी मुझे एवरेज प्राइस गिवन होगा. एप्पल जूस कॉस्टिंग ₹20 per glass, orange juice costing ₹30 per glass, and the mixture is sold at ₹24 per glass. In what ratio were they mixed? Average price given 24. So simple weighted average is 20 into x plus 30 into y upon x plus y is 24. Average price given है किसका? पर ग्लास का. मैंने ग्लास का वॉल्यूम अज्यूम किया x लीटर्स और y लीटर्स और x ग्लास और y ग्लास. 20 into x plus 30 into y upon x plus y is 24. If you solve, x is to y will be 6 is to 4 or 3 is to 2 only. So basically again, now this time आपको रेशियो निकालना है. तो 3 things are given. एक आपको x1 गिवन है, x2 गिवन है और x बार गिवन है और एवरेज गिवन है. तो ये सारे नंबर्स गिवन है, तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सारे एवरेज वाले क्वेश्चन थे, वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन थे. तो नॉर्मली अगर आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है और एवरेज गिवन है तो हम उसके लिए वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं. एलिगेशन एक्चुअली रिवर्स ऑफ वेटेड एवरेज होता है. कोई नया मेथड नहीं है, मतलब मेथड तो ट्रिक नहीं है. एक हम नया डायग्राम यूज करते हैं, नया बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं, बट द आइडिया इज ये रिवर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है. तो एक्स बार मेरा जो नॉर्मल एवरेज होता है जिस F1x1 प्लस F2x2 अपॉन F1 प्लस F2, तो इसको मॉडिफाई करते हैं. ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला है. इसको अगर मॉडिफाई करेंगे F1x बार प्लस F2x बार इज इक्वल टू F1x1 प्लस F2x2. F1 इंटू एक्स बार माइनस x1 इज इक्वल टू F2 इंटू x2 माइनस x बार. हमने इसको वहां ले गए, F1 को एक साइड लेकर और F2 को एक साइड लेकर गए. F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू x2 माइनस x बार अपॉन x बार माइनस x1. तो ये जो रेशियो है F1 अपॉन F2 का विच इज इक्वल टू x2 माइनस x बार अपॉन x बार माइनस x1. तो एक रेशियो आएगा. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, अभी से भले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो x2 माइनस x बार एंड x बार माइनस x1, बट लेट अस पुट दिस इन दिस फॉर्म. x1 आई विल पुटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, x2 यहाँ पर, x बार यहाँ पर. तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, x2 और x बार का डिफरेंस ऑफ दीज टू, x2 माइनस x बार. और हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे x बार माइनस x1 का. तो ये मेरी सपोज एक मिनिमम वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, ये मेरी हायर वैल्यू है. इनको स्वैप भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं. एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस है वही मेरी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होगा. F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x बार अपॉन x बार माइनस x1. तो रिवर्स होता है एक्चुअली. F1 में हम x2 यूज करते हैं और F2 में हम x1 यूज करते हैं. ये एक्चुअली रिवर्स की तरह काम करता है. वेयर इट इज इंपॉर्टेंट, जहां हमें रेशियो निकालना होगा. जैसे अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था एप्पल ग्लास और जो मैंगो ग्लास वाला जो क्वेश्चन किया था, उस वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना था. तो ये अप्रोच बहुत बेनिफिशियल होगी.
बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि F1 F2 क्या लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन इसमें देख लेते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन स्टेट्स दैट रेशियो इन विच दीज टू क्वांटिटीज आर मिक्स्ड आर बेसिकली द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस डिफरेंस विद द एवरेज। तो इनका क्रॉस डिफरेंस कितना है, F1 के साथ X2 लेंगे और F2 के साथ X1 लेंगे, तो इनका क्रॉस डिफरेंस कितना है विद द एवरेज। एवरेज का कितना डिफरेंस है, X2 माइनस एक्स बार और एक्स बार माइनस X1। तो ये एलिगेशन मेथड है जो हम अगले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। Allegation is widely used tool. It will be used in all the question where average term is used. जहाँ weighted average यूज होगा वहाँ एलिगेशन यूज कर सकते हैं। जहाँ weighted average term यूज होगा वहाँ हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरचेंजेबल टर्म्स है। रिवर्स ऑफ जो weighted average है वो हम एलिगेशन बोल सकते हैं। To identify what variables will be used in F1 and F2 is important part. So I will be taking many examples here. Questions कौन कौन से हो सकते हैं, एवरेज मार्क्स वाले हो सकते हैं, वेट्स वाले, हाइट्स वाले हो सकते हैं, एवरेज प्राइस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑफ टू वेराइटीज, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एवरेज इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी किसका होगा वो इंपॉर्टेंट है और वो हम चेक करते हैं यूनिट के बेस पे कि इनका यूनिट क्या आएगा। यूनिट मींस एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, तो हमें स्टूडेंट का रेशियो मिल जाएगा। एवरेज प्राइस पर क्वांटिटी पर केजी, तो हमें क्वांटिटी का एवरेज मिल जाएगा। What I'll do, I'll discuss this thing in detail manner in every, I'll take some 7 to 8 more examples just to understand कि रेशियो किसका होता है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट की फॉर्म में ये गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड अगर गिवन है तो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, तो यानी आवर्स का रेशियो आएगा या टाइम का रेशियो आएगा। बट आई थिंक आई विल बी डिस्कसिंग एवरेज स्पीड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी इसमें गिवन होंगे हम उसको यूज करेंगे। एवरेज कंसंट्रेशन इज गिवन तो वो हम इसमें यूज करेंगे। इन ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड थ्रू सुटेबल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। तो एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक द टू सेक्शंस ए एंड बी, एवरेज मार्क्स ऑफ ए एंड बी 70 एंड 90 मार्क्स। एवरेज मार्क्स ऑफ ए एंड बी 74 मार्क्स। पहले ए का स्कोर गिवन है, ए का स्कोर 70 है, बी का स्कोर 90 है और ग्रुप का एवरेज 74 गिवन है। हमें बताना है कि स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड स्टेट 70 एक साइड रखेंगे, 90 राइट साइड, 74 सेंट्रल में। 94 एंड 70, 90 एंड 74 डिफरेंस इज 16, 74 एंड 70 डिफरेंस इज 4, रेशियो आएगा 16:4 और 4:1। अब ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ये एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो मार्क्स पर स्टूडेंट होते हैं, 70 मार्क्स पर स्टूडेंट। पूरे ग्रुप का एवरेज क्या है, 74 मार्क्स पर स्टूडेंट। जो रेशियो जो आएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा 4:1। अगर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर है और एक स्टूडेंट यहाँ पर है तो 4 × 70 is 280, 1 × 90 is 90, 280 + 90 is 370 अपॉन 5 इट विल बी 74 ओनली। तो जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। जज कैसे करेंगे इसको कि द यूनिट इज गिवन एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, तो रेशियो विल कम फॉर स्टूडेंट्स ओनली। तो ये आप एक चीज याद कर सकते हैं कि फॉर एवरेज मार्क्स और वेट्स और हाइट्स हम स्टूडेंट्स रेशियो लेंगे, वही हमारा रेशियो F1 और F2 का होगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे, पर बेसिकली अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेशियो जो होगा वो स्टूडेंट्स का होगा, वो यूनिट के बेस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज देयर आर टू वैरायटीज ऑफ राइसेस आर गिवन, राइस वैरायटी 1 एंड राइस वैरायटी 2, ए और बी गिवन है। एक का प्राइस 70 है, एक का प्राइस 90 है, एवरेज प्राइस 74 है। तो बताना है किस रेशियो में इनको मिक्स करेंगे। सी एवरेज और दिस वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन इज वेरी वाइडली यूज्ड टर्म। जहां भी एवरेज टर्म यूज होगी वहां हम एलिगेशन का यूज कर ही सकते हैं। तो द मेन आइडिया विल बी, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो एवरेज मार्क्स वाला क्वेश्चन अलग था और अभी जो है वो एवरेज प्राइस वाला क्वेश्चन है। इस वाले केस में 70, 90, 74, तो डिफरेंस कितना आएगा 16 एंड 4, रेशियो इज 4:1। अब 4:1 मतलब अगर 4 पार्ट इसका लेते हैं और एक पार्ट इसका लेते हैं, तो 4 अगर इसका लेंगे और एक पार्ट इसका लेंगे, एवरेज 74 आ जाएगा। वो कैसे जज कर सकते हैं, यहाँ एवरेज प्राइस पर केजी है तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी जो है उसका रेशियो यहाँ पर आएगा। तो जो 4:1 है वो क्वांटिटी का रेशियो है, क्योंकि 4 केजी ये होगा और 1 केजी ये होगा, या 4 पार्ट ये होगा और 1 पार्ट ये होगा। उसके में जो आंसर है वो 74 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। 70 रुपीज और 90 रुपीज, इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा,
तो एलिगेशन यूज कर ही सकते हैं, बट हम डायरेक्टली ये भी जज कर सकते हैं कि रेशियो जो होगा वो क्वांटिटी का ही आएगा एज पर द यूनिट से। सेकेंड पॉइंट जब याद कर सकते हैं, when average price is given, the quantity ratio will be the ratio of F1 and F2. Next, apple juice costing 20 rupees per glass and 30 rupees per glass sold at 24 rupees per glass. तो इसमें भी लास्ट टाइम आई सॉल्व दिस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज, इस वाले क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं 20, 30 एंड 24, डिफरेंस इज 6:4 और डिफरेंस इज 3, रेशियो इज आपका डिफरेंस ऑफ 30 एंड 24 इज 6, 24 एंड 20 इज 4, रेशियो इज 6:4 और 3:2। तो ये रेशियो किसका आएगा, ये पर ग्लास का रेशियो आएगा या वॉल्यूम का रेशियो आएगा, इन व्हाट रेशियो दे आर मिक्स्ड। तो पहले का कितना वॉल्यूम लिया है, सेकंड में कितना वॉल्यूम लिया है, पहले में कितने ग्लास लिया है, सेकंड में कितने ग्लास लिए हैं, तो ये रेशियो जो आएगा वो वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पर आएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इन एन ऑफिस देयर आर 60 एग्जीक्यूटिव्स, ये मैं लास्ट क्वेश्चन पहली बार करवा चुका हूँ, लास्ट मेथड से हम कर चुके हैं। इसमें एलिगेशन यूज करके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है और बहुत इजी क्वेश्चन है इफ यू यूज एलिगेशन मेथड। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव इज रुपीज 15 lakhs, सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी गिवन है 45 लाख, जूनियर की सैलरी गिवन है 9 लाख रुपीज। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, इसमें भी हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। एवरेज सैलरी गिवन है सीनियर की, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की और सारे एग्जीक्यूटिव्स की। तो 45 lakhs, 9 lakhs एंड 15 lakhs, डिफरेंस ऑफ दीज टू। अब ये नंबर लोअर नंबर यहाँ पर है तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ही निकालते हैं हमेशा। 15 lakhs एंड 9 lakhs, डिफरेंस इज 6 lakhs, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 30 lakhs, 6 lakhs and 30 lakhs, the ratio is 1:5. The ratio of senior versus junior is 1:5. If there is one senior executive, there are 5 junior executives. तो 1:5 में अगर 60 senior executives होंगे तो 5 जो है 60 वाले केस में वो 300 के बराबर हो जाएगा, because ratio is 1:5. इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये किसका रेशियो है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो है। रीजन क्योंकि यहाँ पे एवरेज सैलरी पर एग्जीक्यूटिव गिवन है, पर एम्प्लॉय गिवन है। एवरेज सैलरी नॉर्मली एग्जीक्यूटिव के हिसाब से होती है कि 15 लाख रुपीज पर एम्प्लॉय की सैलरी है, तो रेशियो विल कम फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ओनली। तो ये पार्ट यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो किस चीज का आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेशियो आएगा इस केस में वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजीत बॉट अ कार एंड अ बाइक फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 7,50,000 एंड मेड अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेलिंग बोथ। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30%, कार का प्रॉफिट गिवन है 20%, बाइक का प्रॉफिट गिवन है 45%। तो कार का प्रॉफिट गिवन है और बाइक का प्रॉफिट गिवन है, टोटल मुझे कॉस्ट गिवन है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। तो इंपॉर्टेंट पार्ट टू लुक आउट इज कि इसमें एलिगेशन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जो 3 नंबर्स तो गिवन है 30%, 20%, 45%, टोटल वैल्यू भी गिवन है, इसमें एलिगेशन यूज कैसे करेंगे। सो एवरेज मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कार का प्रॉफिट गिवन है, बाइक का प्रॉफिट गिवन है और एवरेज प्रॉफिट गिवन है 20%, 45% एंड 30%। नेट वैल्यू इज डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 15%, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 10%। 15% एंड 10%, इसका डिफरेंस आएगा 3:2 का। तो इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर गोइंग फर्दर इज कि ये रेशियो किस चीज का है। ये रेशियो एक्चुअली है कि कार और बाइक किस प्राइस पे परचेज हुई है, क्योंकि प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो होता है वो मुझे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इस वाले केस में 20% प्रॉफिट और 30% 45% प्रॉफिट है। हमने डिफरेंस तो निकाल दिया बट डिफरेंस 3:2 का आ भी गया, रेशियो भी आ गया 3:2 का। बट 3:2 एक्चुअली डिनोट करता है इन दोनों के कॉस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है 20% प्रॉफिट है, या मेरा अगर प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज या 4 लाख रुपीज, वो भी मेरा प्रॉफिट गिवन है, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो ये जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। इसको रीवेरीफाई कर लेते हैं। अगर रेशियो 3:2 के बराबर है, अगर ये प्राइस 300 होगा और ये प्राइस 200 होगा, अगर मैं एक प्राइस को 300 ले लेता हूँ, अगर मैं इस प्राइस को 300 ले लेता हूँ और इस प्राइस को 200 ले लेता हूँ, व्हाट विल हैपन, 3 into 20 is 60, 2 into 45 is 90, 60 plus 90 150, 150 अपॉन 5, 150 अपॉन 5 कितना होगा, 30% प्रॉफिट होगा। तो 3 और 2 अगर मेरा कॉस्ट रेशियो होगा, या 300 200 अगर मेरा कॉस्ट रेशियो होगा, उस केस में मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 30% के बराबर होगा।
तो अगर ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। बट ये बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है इस वाले केस में किस चीज का रेशियो है ये। तो ये रेशियो जो है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। रीजन भी प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट अगर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा तो रेशियो विल कम फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ओनली। अब नेट कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? 7,50,000 गिवन है। अगर 7,50,000 गिवन है तो आंसर जो होगा वो, अगर टोटल प्राइस 70, आंसर 3 lakhs होगा। आंसर जो होगा वो 3 lakhs और 450 lakhs होगा। या 75,000 अगर नेट कॉस्ट प्राइस गिवन है तो 2/5 ऑफ 75,000 होगा, 30,000 के बराबर आ जाएगा। अगर 7,50,000 है उस वाले केस में 3 lakhs और 4,50,000 के बराबर हो जाएगा। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Peter lent a total of 90,000 at a simple interest to two persons at 18% per annum and 15% per annum. If he received a total interest of 30,600 after 2 years, find a sum lent at 15% per annum. नंबर्स तो गिवन है बट यहाँ पे दो ही नंबर्स गिवन है। एक का इंटरेस्ट है 18% पर एनम, एक इंटरेस्ट है 15% पर एनम। ठीक है। इफ ही रिसीव टोटल इंटरेस्ट ऑफ 30,600 आफ्टर 2 years, interest rate for person X is 18%, interest rate for person Y is 15%. ठीक है। तो दो इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 18% और 15%। ओवरऑल इंटरेस्ट इज 30,600, दैट इज ऑन 90,000। तो उससे हम आर निकाल सकते हैं। 30,600 इज 90,000 इंटू आर इंटू 2/100। उससे आर की वैल्यू होगी 17% पर एनम। तो तीन नंबर्स आ गए, एक 18% है, एक 15% है और एक 17% है। तो 18%, 15%, 17%, difference of these two is 2, difference of these two is 1, ratio will be 2:1. If ratio is 2:1, this time this ratio will be of the principal, उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट लेंड किया है। रीजन, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। 18% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपए पे मिल रहा है। 100 रुपए क्या है? मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है। 15% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 15 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपीज पे, तो मेरी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। तो 18 और 15% जो उसने लेंड दिया है अमाउंट, वो अमाउंट जो दिया है वो 90,000 रुपीज का दिया है। तो जो प्रिंसिपल रेशियो है वो आएगा यहाँ पर 2:1 के बराबर। इसको रीवेरीफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2:1 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, उस केस में क्या होगा? 200 और 100 रुपीज ले लेते हैं। अगर 200 और 100 रुपीज अगर लेंगे उस केस में 2 into 18 is 36 plus 1 into 15 is 15, 36 plus 15 is 51, 51 upon 3, 51 upon 3 is 17%। तो नेट इंटरेस्ट क्या होगा? 17% के बराबर होगा। दैट मीन्स 2:1 क्या है? मेरे प्रिंसिपल का रेशियो है। तो अगर रेशियो 2:1 है, 90,000 को डिवाइड कर सकते हैं 2:1 फॉर्म में। तो 15% वाला कौन सा होगा? सेकेंड वाला पार्ट होगा। अगर सेकेंड वाला पार्ट होगा तो आंसर आएगा 1/3 ऑफ 90,000, दैट इज ₹30,000। तो इसमें रेशियो जो है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा, तो रेशियो विल कम फॉर द प्रिंसिपल लेंड टू 2 persons। तो लास्ट 3-4 क्वेश्चंस, they're not a pure allegation type of question because allegation is widely used in most of the average questions। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे एवरेज टर्म यूज हुई है, दैट मीन्स वी कैन सॉल्व इट बाय एलिगेशन मेथड ऑल्सो। आई हैव गिवन सम मनी और पीटर हैज गिवन सम मनी टू 2 different persons। एक को दिया 18% से, एक को दिया 15% से। उस वाले केस में अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 30,600 रुपीज, उसको एवरेज इंटरेस्ट रेट पता है, उस वाले केस में उसका जो आंसर होगा वो आंसर प्रिंसिपल का रेशियो होगा, जो उसने मनी लेंड दिया है उसका रेशियो होगा। ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिगेशन थिंग, एलिगेशन का और भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको रेशियो निकालना है और फिर रेशियो को मर्ज भी करना है, मिक्स भी करना है। पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 3 classes आर 76, 83 एंड 69। तो 3 क्लासेस का एवरेज गिवन है 76, 83 एंड 69। ए और बी का एवरेज गिवन है, बी और सी का एवरेज गिवन है। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास ए एंड सी कितना होगा? तो ए और बी के लिए हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लास ए का एवरेज पता है, क्लास बी का एवरेज पता है,
और ओवरऑल क्लास ए एंड बी का एवरेज पता है। ए का एवरेज, बी का एवरेज, क्लास ए एंड बी का एवरेज 76, 83, 79। इससे हमारे ए इज टू बी का रेशियो आ जाएगा। 76 लेफ्ट हैंड साइड पे, 83 राइट हैंड साइड पे, 79 यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 4, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 3, 4:3 ये स्टूडेंट रेशियो होगा ए और बी का। ओके, नेक्स्ट बी का एवरेज मुझे पता है 83, सी का एवरेज 69 और नेट एवरेज 75। तो ये बी का एवरेज गिवन है 83, 69 एंड 75। तो 83, 69 एंड 75 उस वाले केस में मेरा जो आंसर होगा 83, 69, 75, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6, इसका डिफरेंस आएगा 8। तो रेशियो आएगा 3:4 के बराबर। तो ए इज टू बी का रेशियो पता है 4:3, बी और सी का रेशियो पता है 3:4। तो अगर रेशियो ऑफ ए एंड बी पता है, रेशियो ऑफ बी एंड सी पता है, तो हम रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी निकाल सकते हैं। ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 3 है तो ये 4 होगा। तो ये 4:3:4 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है ए और सी का एवरेज क्या होगा। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 4:4 और 1:1 के बराबर है। तो रेशियो 1:1 के बराबर है, तो अगर ए का स्कोर मुझे पता है और बी का स्कोर मुझे पता है, रेशियो 1:1 है, मेरा आंसर जो है, ए और सी का मुझे एवरेज लेना है 76 और 69। 76 और 69 का अगर हम एवरेज लेंगे तो ये सी का एवरेज है, तो ये बी का एवरेज नहीं है, ये सी का एवरेज है। तो ए और सी का आंसर होगा 76 + 69/2, दैट विल बी 72.5। एलिगेशन वॉज रिक्वायर्ड 2 times फॉर ए एंड बी का एवरेज निकालने के लिए और बी एंड सी का एवरेज निकालने के लिए। इन फाइनली ए और सी का रेशियो निकालने के लिए अगर ये सी होगा तो उस केस में आंसर a + b/2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ अगले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे रेशियो किस चीज का होगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार खुद सोच के देखिए कि इसमें कैसे करेंगे और किस हिसाब से इसमें किस चीज का रेशियो होगा वो एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। Ramesh scored 270 marks for attempting all 100 questions. Find the number of wrong questions attempted by Ramesh if 4 marks are given for every correct answer and -1 are given for every incorrect answer. So Ramesh के 270 marks हैं of attempting 100 questions. One approach can be equation method. Number of right plus number of wrong is like 100 questions. Then for right mark 4 marks, for wrong mark -1. उससे इसको 270 आप उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। बट बिकॉज वी आर डूइंग एलिगेशन, वी शुड गो एलिगेशन इन डिटेल मैनर कि एलिगेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक नंबर है 4, एक नंबर है -1, एक नंबर है 4, एक नंबर है -1, और एवरेज कितना है? एवरेज है 2.7, 270/100 मेरा एवरेज है 2.7। एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन इज 2.7 मार्क्स पर क्वेश्चन। इस केस में इफ आई यूज एलिगेशन, एक का वैल्यू है 4, ये नंबर माइनस भी हो सकता है, एक नंबर है -1 और एवरेज है 2.7। तो 4, -1 और 2.7, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 1.3, डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 3.7। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3.7 एंड 1.3, तो वो डिफरेंस जो है 3.7 एंड 1.3 के साथ 37 एंड 13 का आ जाएगा। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो रेशियो आया है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आएगा, क्योंकि मार्क्स जो है वो पर क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने पहले ही बताई थी कि जो रेशियो आता है वो यूनिट्स के हिसाब से आता है कि इसकी यूनिट्स क्या है। एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, एवरेज प्राइस पर किलोग्राम पर वेट, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, रेशियो जो है वो स्टूडेंट्स का आएगा। एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन या रेशियो जो है वो क्वेश्चंस का आएगा। तो क्वेश्चंस का रेशियो क्या है? 100 क्वेश्चंस हैं तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो है, मार्क्स का रेशियो यहाँ पर नहीं है। तो जज कैसे कर सकते हैं कि यूनिट क्या है इसकी? अगर 2.7 मार्क्स पर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पर क्वेश्चन के हिसाब से आएगा और जो रेशियो आएगा वो क्वेश्चंस का आएगा यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हम रेशियो किस चीज का निकाल रहे हैं। तो इन दिस वे इफ यू अंडरस्टैंड तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो यूनिट इज मार्क्स पर क्वेश्चन, तो रेशियो विल बी फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी लॉजिक पर, और इस पर ट्राई टू फाइंड कि ये रेशियो जो है वो किस चीज का है। सपोज अ पर्सन ट्रेवल्स 585 किलोमीटर इन 9 hours. Part of a distance he has covered at 45 km per hour and remaining at a distance आपका speed of 105 km per hour.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम एट अ स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर। तो एक मिनिमम स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, एक हाईएस्ट स्पीड गिवन है 105 किलोमीटर पर आवर। तो 45 और 105 दो स्पीड गिवन है। अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड भी तो गिवन ही है 585/9 दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एवरेज स्पीड भी गिवन है 585/9 इज 65 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एलिगेशन यूज करेंगे तो 45, 105 एंड 65, तो रेशियो जो आएगा 45, 105 और 65 वो 40 एंड 20 रेशियो जो आएगा वो 2:1 का आएगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज ये टाइम का रेशियो है या डिस्टेंस का रेशियो है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, क्योंकि इसके यूनिट्स क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर पर आवर। Now the point is the student will be in dilemma situation कि किसको डिवाइड करें, 585 को डिवाइड करना है कि 9 आवर्स को डिवाइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम 9 आवर्स को डिवाइड करेंगे 2:1 फॉर्म में। 9 आवर्स को अगर डिवाइड करेंगे 2:1 फॉर्म में तो उस वाले केस में मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि 585 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है तो रेशियो 2:1 उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। रीजन बीइंग ये स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में गिवन है। जो फॉर्मूला भी होता है वो S1T1 प्लस S2T2 अपॉन T1 प्लस T2 होता है। तो वन इजी थिंग टू जज दिस थिंग विल बी इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स जो होंगे वो किलोमीटर पर आवर में होंगे, तो रेशियो जो आएगा वो टाइम का आएगा। तो हम 9 आवर्स को डिवाइड करेंगे 2:1 फॉर्म में, तो 6 आवर्स यहाँ पर होंगे और 3 आवर्स यहाँ पर होंगे। अगर 6 और 3 आवर्स यहाँ पर होंगे उस केस में, अगर 6 और 3 आवर्स मेरे यहाँ पर होंगे उस केस में जो मेरा आंसर है ये 6 होगा और ये 3 होगा। तो आंसर है वो 45 × 6 जो है वो 270 किलोमीटर आएगा, और यहाँ पे जो आंसर 315 किलोमीटर आएगा। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लास यहीं तक थी। बाकी जो भी डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड वाले होंगे और रिमूवल और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। इन एलिगेशन थिंग जो हमने क्वेश्चन मेनली डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं उन क्वेश्चन को। एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, तो उसमें रेशियो स्टूडेंट्स का आएगा। एवरेज वेट पर स्टूडेंट, तो उसमें रेशियो जो है वो वेट का आएगा। एवरेज प्राइस पर ग्लास, तो रेशियो जो आएगा वो पर ग्लास का या पर वॉल्यूम का आएगा। एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉई, तो जो रेशियो आएगा वो एम्प्लॉइज का आएगा। यहाँ पे बहुत गलती हो सकती है कि F1 और F2 जो रेशियो आता है वो किस चीज का रेशियो आता है। तो जो रेशियो आएगा वो जहाँ पे यूनिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आएगा। एवरेज स्पीड मुझे गिवन है तो किलोमीटर पर आवर, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आवर्स का या टाइम का रेशियो आएगा। एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन, जो सेकंड क्लास अभी एग्जाम्पल किया था, वो जो रेशियो आएगा वो भी इसमें क्वेश्चन का रेशियो आएगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे बुकलेट से, और जो भी आपके डाउट्स या क्वायरीज हैं यू कैन कॉन्टेक्ट सेंटर कोऑर्डिनेटर फॉर योर सेंटर। ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, बट आई थिंक इफ यू डू अ प्रैक्टिस ये बहुत ईजी मेथड है एज कम्पेयर टू वेटेड एवरेज वाला पार्ट, बिकॉज विदाउट मेकिंग इक्वेशन जस्ट बाय टेकिंग डिफरेंस इन अ क्रॉस मैनर हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो एक बार मैम को बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।